You want to tell them what traders is? So traders at BPHC is basically one of the largest financial clubs on the campus, and हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी बच्चे नए आए हैं कॉलेज में, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा बहुत दे पाए. Correct. लाइक 11th-12th के बाद बच्चा नया नया आया है, उसको पैसा क्या होता है ये नहीं पता होता. When I came to college, people were talking in terms of okay, like this chai या this coffee cost $20. हाँ. I'm like, रुपी नहीं चलती क्या यहाँ पे? लिटरली ये मेरा थॉट था. और एक्चुअली 100-200 लोगों का एटलीस्ट ये थॉट होगा 1000 के. करेक्ट आराम से भाई, आराम तो से. ट्रेडर्स was born very recently actually. Yeah. देखा जाए तो हमारा कैंपस 2008 से एग्जिस्टेंट है, बट ट्रेडर्स was born around 2017 Yeah. 2018. So 17-18, okay. And it was with this purpose only. जो हमारे फाउंडर थे, he was like, he wanted to learn trading, he was a trader, and he didn't find anything on campus जहाँ पे वो सीख सके. Perfect. Yeah. या कोई कम्युनिटी हो जहाँ पे वो बात कर सके मार्केट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में इन जनरल, which is a very crucial part of everyone's life. Yeah, true. Not something that gets often talked about. And Exactly. Like, a common criticism of Indian colleges is कि they don't teach you how to deal with money. Like real stuff. Yeah. So trader is nothing but a community जहाँ पे हम real stuff के बारे में बात करते हैं. real stuff, right? Okay. So what is the real stuff? What do you talk about? Get us more into that. Like what all do you discuss? Okay. What are activities that you do? Traders में the core theme is there are a few traders. There are very few people who actually become good traders. There is a very skewed percentage. Like if there are, बहुत famous quote है, मैं चुरा रहा हूँ, अगर 10,000 लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 9,990 बोलते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है, ट्रेडर्स है, बट उसमें से 9,980 झूठ बोलते हैं. There are hardly, out of 10,000 you will hardly find 10 or 20 people who will actually be good traders. So traders की अब community है. So Wait, what is a trader? Like trader? Like are you saying long-term investors as well? I'll come to it later. Okay, I'll come to it a bit later because that will be lengthy. Okay. So traders में हम क्या करते हैं? We have a few traders जो अपने experiences share करते हैं and basically बच्चों का learning curve कम करते हैं. Right. If someone has to become a trader, it takes a lot of time, takes a lot of patience, and it's sort of research work, I'll say. जैसे labs में कोई भी scientist कर रहा हो, वैसे टाइप का research होता है. तो people are often clueless कि क्या करे, किसी को नहीं पता. So वो learning curve को कम करने में हम help करते हैं. हम sessions लेते हैं, like frequency vary करती है जैसे जैसे बच्चे फ्री हो, वीक में once या twice वैसे. Once or twice a week is like a good amount. हाँ, we try to maintain twice a week, but फिर एग्जाम्स वगैरह रहते हैं तो once a week हो जाता है. फिर इनफॉर्मली भी लोग मिलते हैं, बात करते हैं. ग्रुप पे हम ट्रेड्स डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर माइंडसेट साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हैं. उसके अलावा फिर बाहर फर्म्स में कैसे अप्लाई करना है, फ्यूचर क्या क्या है, हम टॉक्स के लिए स्पीकर्स बुलाते हैं. फिर फन इवेंट्स, गेम्स भी होते हैं कुछ लाइक फेस्ट में, जस्ट टू कीप द जनरल क्राउड एक्टिव. Correct. So this is more or less what traders do. This is more or less. Achha, let's get into the different types of traders now. Like before I forget about it, what are the different types of traders and like what is a trader? Come on, let's discuss about that. Okay. देखो, अब अगर by definition जाना हो तो you can say a trader is anyone who buys or sells any sort of financial instrument. Right? But I don't call them traders. See, there's a very thin line between not knowing what you're doing and actually knowing what you're doing. So gambling, trading या playing a video game, ये तीनों चीजें ऊपर से देखो तो सेम लगती है एक्चुअली. मैं बोलूँ गैम्बलिंग भी ट्रेडिंग ही है एक्चुअली, देखा जाए तो इट्स वेरी सिमिलर. यू नो, आई एक्चुअली प्रूव इट कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं होती. बट प्लेइंग अ वीडियो गेम एंड वर्सेस गैम्बलिंग ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जो मैंने बोला 10,000 में से 9,980 झूठ बोलते हैं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग वीडियो गेम. दे आरंट इवन गैम्बलिंग. Correct. इफ यू आर गैम्बलिंग यू विल मेक मनी. If you're gambling, you'll make. Yeah, gambling is very interesting thing to do. अच्छा. मैं अभी recently गया था यार, गोवा में मेरी PS थी. So I went to a casino. And I was gambling. I was playing poker. And मैं सारे trading के concepts लगा रहा था. Same है. It's same. What is the overlap? See, trading में you have to manage your psychology basically. It's statistics. Over a series of trades, anything works out. Over a single event, it's completely random. 50-50 heads, tails वाला. But you have an edge जो 1 lakh ट्रेड्स में चल जाएगी. So when you are playing poker also, हर हैंड की एक प्रोबेबिलिटी होती है. If you play 100 hands with an ace king or an ace queen, you know कि मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है with a particular flop, turn and a river. Damn. Okay. But wait, you know a lot about poker?
Yeah. Okay. Before we go more into the trader sort of You thing. want to play poker? But tell me, one day. Tell me, After like, this. after this. Okay, no, but tell me, like, how does it work? Like, what all concepts do you use? Do you like learn, memorize? I've seen like the statistics charts. Ki, if you have this hand, this is the percentage of you winning and all that. Like, do you learn those? Do you just have it under the intuition? Like, when did you start playing? Professional poker players do learn that, but I am not a professional poker player. I have a sort of intuition. I can say the winning probability will be between 50 to 60%, but I can't pinpoint 54.5. That's okay. But like, generally, if you know, okay. So you've been playing for a while. I've been playing for around 3-4 years. 3-4 years. 3-4 years must be like insane. Casually with friends. Yeah, but still, like that's still a good amount. Damn, 3-4 years of poker, and then you're seeing it overlaps with trading. 100%. Okay, so one of the things was just you have to keep your emotions in Statistics. check. Yeah, statistics. Second, what do you do after a win? What do you do after a loss? How do you manage your emotions, and how do you actually make it reflect in your actions or not make it reflect in your actions? If you have won a trade, let's say you bet 100 rupees on a trade and you got it right, the 100 went to 200. What do you do on the next trade matters a lot, right? Do you trade on 200? Do you trade on the same 100? Then what kind of trade do you take? What kind of risk and reward equation? Do you even understand the risk and reward equation? Yeah. Do you even take it into account? Yeah, so there are like hundreds and millions of strategies actually, trading strategies you can apply, and what all you do on charts, the same thing you can do in gambling. Any type of gambling. Blackjack, poker, any type. So you play poker? Yeah, I play blackjack, poker. Blackjack, poker. Both, jab you have some edge. Like, blackjack is a slight edge, right? It's 51% or? Yeah, it's 51-49. Or 51-49. Yeah, damn, bro, that's interesting. Where was your PS? Goa. Starflex Sealing. Huh? Starflex. What did they do? It's a very small company. It manufactures gaskets. Gaskets. Yeah, they're like big steel rings which are used to join oil pipes. They just manufacture that. And you did what for them? I was managing their inventory. I actually took projects with them. They were not giving me any work to do as such. So PS1 it's very light, bro. They don't really give you much work. But I pitched to them ki their raw material was basically steel and iron, right? And I trade in commodity futures. Yeah. I told them, give me your expected revenue, give me your expected number of orders, your past history, and I can try to like sort of create a model which predicts what your future orders can be and try to hedge and make your raw material cost constant. Yeah, this is really smart, yeah. Like their main problem was that iron price may fluctuate from 100 to 150 and then their margins get compressed, right? Correct. So if I'm able to like keep the cost constant at even 120 or 128 for them, them. So how do you make they can beat the competition. Yeah. How do you use options or whatever you use for making it predictable? What do you do? For making it predictable, I trade their order book. Okay. How much orders are they receiving? Basically, just to see कि अभी जैसे जुलाई का month चल रहा है. So how much iron will they be needing in August, September, October? 3 months. हाँ. And उसके हिसाब से you can buy and sell futures. There are hundreds of strategies. Very common knowledge, like people will find on YouTube. So you can keep that price constant. Yeah, that's perfect. So you did that for them. I made the model. I gave it to them. Now They told it they'll use. I don't know if they are or not. All right. So again, coming back to poker and trading. Yeah. So how did we get to trading? Poker. Oh my god. Poker is similar. Yeah, poker is similar to trading, and yeah, you're just going talking about that. And yeah, so like, what are the activities again? Like coming back to that. So you do some sessions bi-weekly and all of that. Like, do you record them? How many people come up? Like, how many people show? It's actually a decreasing graph. Oh my god. At the first session, the one of the biggest classrooms is F102, 105. Those get completely full. Like there are around 500, 600 people. 600 people. That's in the initial sessions. Yeah. Then it keeps on decreasing exponentially. Yeah, I mean, see, like initially after people have interest. 20 or 25 sessions, around 20-30 people would be remaining. That's still a lot of people. That's a lot of people. I expect around 2 or 3 out of them to actually like learn and put something because it requires a lot of dedication, a lot of time. Many people are not able to devote that. Correct. To become like hardcore traders. And you said you trade in commodity futures as well. Like what all? Like I don't know how much you can talk about that, but like what all do you trade? I mainly trade gold and silver. Like people who know me would know silver is my favorite. I don't know why, but I just love silver. I love silver. You love silver? Yeah, but copper, gold, silver. Yeah, these are the main ones which I trade. These are the main ones. I started with crude oil, but how did you get into this? Like
Why? How trading? Okay, like trade. Even I didn't know I got into trading when I got into it first. It was around demonetization. After demonetization happened Yeah. in 2016, and na. Yeah, something. So that's the point of time where I actually started to learn about money. Yeah. Before that, I didn't even know what money was. Hmm. It was like those slots के points या coins कि हाँ ये जाके दे दिया ये मिल गया. These are points, video game के points. Correct. I don't know what money was. Yeah. But demonetization में I could see यार कि नालियों में पैसा बह रहा है. Hmm. I was going out of my home और मेरे को नाली में ऐसे बैग दिख रहा है पैसे को. पता नहीं होगा कुछ 2-4 करोड़ रुपए होंगे पता नहीं. ऐसे नोटों की गद्दी नाली में बह रही है. Yeah. I was walking with my father और मेरे को दिखा. कुछ तो है यार. कुछ तो है. हाँ, and then I got intrigued. I started watching this news and all. और वहाँ से धीरे धीरे I got. So 2017 में I got to know कि अच्छा stock market कुछ होता है. And that was like the biggest turning point in my life. I got shocked. हाँ. I was like मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं रोज स्कूल जाता हूँ. हाँ. Like मार्केट 9 से 3 चल रहा है 3:30 तक और इतना कुछ हो रहा है और मैं अभी तक लाइफ में स्कूल जा रहा हूँ. मेरे को इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं. वैसा कि देयर इज दिस थिंग्स आल्सो आर हैपनिंग. ये भी चलता है. Bro, तेरे स्कूल टाइमिंग में लोग ट्रेडिंग कर रहे थे. हाँ, मतलब एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ के ब्रश करके बस में जाके स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ पढ़ के आके 5 बजे सो जाता हूँ. तो मेरे को लगा मैं क्या कर रहा हूँ. स्कूल बहुत ही ऐसे वियर्ड लगने लगा. हाँ. And then you got into trading. Yeah, that's when I started playing video games. So you started playing video games. What did you play? I wasn't trading at that point of time. What I was doing was actually just playing a video game. I was randomly clicking green, red. I didn't know what. Did you trade with actual money or simulators? No, I first traded with simulator, but at that time only I sort of started with actual money. Wait. A very small amount. So was your own money or you asked your parents for money? The first time I did, I asked my parent. I lost it. I was shit scared. Yeah, like वो था पैरों तले जमीन दिसक जाती है. Heart start pumping. I still remember that night. I'll never forget it. तो फिर बोला नहीं, I'll return them their money. I did some gig there, something. I earned a little bit of money. I returned them for, and then I started my own money. That's bro. I really appreciate that. No, because I felt very guilty. भाई मैंने बाप के 5-10 हज़ार रुपए डुबा दिए, मेरे पापा के 5,000 रुपए लेके क्या कर दिया. That was a very big amount for me. Yeah. Because I think trading में या markets में ना there is one thing called as mental barrier. I think every person has a financial mental barrier. हाँ. और सबका होता है. बस किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. True. Like if I tell you कि imagine you lost 2 lakh rupees today. Now how much does it affect you? Imagine you lost 50,000 today. Imagine you lost 5,000 today. Imagine you lost 20 lakhs, 2 crores. So कहीं ना कहीं पे फटेगी. किसी ना किसी पॉइंट पे आगे फटनी शुरू होगी. तो वो तेरा मेंटल बैरियर है कि इसके आगे अब फट रही है. यहाँ पे मैं कंफर्टेबल था, इसके आगे मैं कंफर्टेबल नहीं. देन देयर इज वन थिंग नोन एज, वो मेंटल बैरियर जब क्रॉस कर लेते हो कि यू कैंट इमेजिन मनी. जैसे आई आस्क पीपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिलियनेयर एंड अ बिलियनेयर. इट्स अ वेरी क्रिंज क्वेश्चन, बट पीपल डोंट नो यार. Correct. Millionaire and a billionaire is the same as a millionaire and a person having 10,000 rupees. Yeah. 10,000, right? 1,000, sorry. 1,000. 6 zeros. Yeah, that's bro. That's insane difference, right? $1,000 and a millionaire is the same as a millionaire and a billionaire. Yeah. If you do proportions. And bro, at that stage, it's like crazy to imagine that. Yeah, but for people, a millionaire is also rich, a billionaire is also rich. Yeah. Like, at one point, it just stops computing. Exactly. Like, बहुत हो गया. That's a mental barrier. Correct. So for me, at that point of time, 5,000 rupees was way beyond my mental barrier. Couldn't even imagine. Yeah, exactly. Yeah. अभी ये फर्क नहीं पड़ता, बट अभी पे बहुत ज्यादा. अभी भी है मेंटल बैरियर, बट बस बढ़ बढ़ गया है. ऐसा नहीं है कि है ही नहीं. So now you have a much bigger corpus of money that you trade. Yeah. I'm not looking for the exact amount, by the way, but it's much bigger. ITR वाले आएंगे. Yeah. So that's how you started trading. मतलब थोड़ा सा simulators किया, and then when did you start getting into markets? 2017 June. 27. Bro, you've been trading for so long. 2017 June. Like then I was playing a video game. I told you. Yeah, I wasn't okay, really fine. trading at that point. I didn't know what trading was. When did you start trading, man? Proper trading, I would say around 2019 I started. 2 years I was just playing video games. Yeah, video games. 2019 I actually started trading, but that was a very down phase. And 2021 I actually saw my first like break even and profitable. Damn. Okay. Yes. And so you do intraday or how? Right now I'm doing all. You're doing I have a separate like account for intraday positions. I have a separate account for derivative positions. I do swing trading. I also do. What is swing trading? Swing trading is just like taking a trade for
a few weeks or a few days. Okay, like that. Like 10 days, 1 month, Okay. something like that. Like middle term almost. Yeah, Like between intraday. mid-term trading. Okay, got it. And then after that, you also have longer accounts as well. Yeah, I have an account in which I invest money. Yeah. Then that's called investing. Get it? That's not called trading. Yeah. Okay, got it. Yeah. Fair. Then I have a few accounts in which I don't invest my own money, but I have some clients whom I consult and their money is there. You have clients. Unofficial. Unofficially. I'm not SEBI registered. No. Just in case this video blows, I'm not SEBI registered as of now. Theoretically, we have. Alright. So, 2020. So, what is the difference between playing video games and trading? Understanding what you're doing. And how do you develop that understanding? Observation and experience. There's no other thing. Like, there are a lot of YouTube pe courses, videos, books, and those are very good to read, very good to learn from, but those will never give you the edge which you actually need. Trading में या markets में there is something known as alpha. Now what is alpha? Suppose निफ्टी या कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो हमें X% रिटर्न्स दे रहा है, तो उसके ऊपर हम जो भी जनरेट कर पाते हैं दैट इज आवर अल्फा. एंड किसी भी ट्रेडर या मार्केट पार्टिसिपेंट का यही एजेंडा होता है टू जनरेट दैट अल्फा. करेक्ट. वरना क्यों भाई, तुम इंडेक्स में पैसा डाल के बैठ जाओ, तुम उतना एक्स रिटर्न मिल जाएगा. इफ यू आर गोइंग एंड पुटिंग आउट योर टाइम एफर्ट, इतना भाई स्ट्रेस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इट्स फॉर दैट अल्फा. Correct. So understanding, making a strategy, making a fixed set of rules, and understanding कि मेरे को ये अल्फा मिलेगा and क्यों मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, having that statistical back tested data कि हाँ मेरे पास over a set of 10,000 trades मेरे क्या क्या metrics है, what is my average win rate, what is my average risk reward ratio, मैं जब जीतता हूँ तो कितना जीतता हूँ, जब हारता हूँ तो कितना हारता हूँ, कितनी बार जीतता हूँ, कितनी बार हारता हूँ. और these are like the basic 4 metrics. जैसे बहुत सारे metrics होते हैं. What is the average number of like duration for which I am holding a trade, and all this can be for one particular setup. Then there can be different setups which create a trading system. There can be multiple trading systems will actually create a trader. Wow. तो इन सब के statistics बस पता भी है ना अगर तुमको कि these statistics actually exist and you should look out for these. That makes a big difference. Yeah. All right. So sounds like a lot of maths. Yeah, it sounds is like a lot of statistics. It is maths. How do you learn all of that? Like, is that just कर करके आ जाता है या फिर how did you learn it? Okay. I actually learned. Like, what did you do in that 2 years, 2019 से 2021 तक, that turned you from a video gamer to a trader? Like, what did you learn? What did you do? Like, actually, like I understand that you learned a lot. You probably traded, you lost some money, you gained some money, and you hit break even. But throughout that process, what all did you work on that made that shift for you? I actually started seeing trading as a long-term career. I think that was one major shift, which I did and which 90% of people don't do. Achha. They look at trading as something which will pay off for their daily expenses. Trading is not something which you can pay off your daily expenses by कि मेरे को भाई आज शाम को मैगी खानी है तो मैं ट्रेडिंग से पैसा निकाल के, वो नहीं हो सकता. अगर तुम रोज विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारे अकाउंट में कंपाउंडिंग होगी नहीं. So when you start looking at it from a long-term point of view, तुम देखते हो कि मेरे को ये चीज 5 साल के लिए करनी है ना, तो मैं 1 साल टेस्ट करके देखता हूँ, डेटा निकाल के देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी के क्या स्टैटिस्टिक्स बैठ रहे हैं. Correct. और मेरी एक फिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ. मैं रैंडम ट्रेड्स नहीं लेता. लेट मी जस्ट जर्नल एंड मॉनिटर. जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टेड जर्नलिंग. ट्रेडिंग का जर्नल बनता है कि मैं क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे क्या हाइपोथेसिस थी, लेने से पहले ट्रेड लेते टाइम मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, ट्रेड लेने के फाइनली बाद मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, एनालिसिस बुक. हाँ, एंड एवरी वीकेंड पे आई यूज्ड टू रिव्यू वो जर्नल को कि मैंने इस हफ्ते ये किया, तो मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया, एंड जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग ओवर दैट. That's really actually good. The reflect करते आना and then going back over those things. Weekend पे there's no markets are closed, so you can do all of that. Like weekend is your break. Right, perfect. Journaling is the thing. Weekend पे ही होती है research journaling. Like अभी इस point पे, अभी जो मेरा स्टेज है ट्रेडिंग का, मेरे को ये नहीं करना पड़ता कि रिफ्लेक्ट करूं बहुत ज्यादा. एट दिस पॉइंट आई डू मोर ऑफ रिसर्च. आई ट्राई टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा एज एंड अल्फा. बट इनिशियली 1921 में आई हैड टू लुक अपॉन माई सेल्फ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि स्ट्रेटेजी प्रूवन है, स्ट्रेटेजी चलेगी, फिर भी नहीं कर पा रहा. करेक्ट. एंड हाउ डू यू डू दिस 10,000 का, like वो जो तू बोल रहा है, you can look back over those things and test your strategy. Like how does that work? I don't even know what that is. See, there are multiple ways. अभी तो algorithms आ गए. You can actually code your strategy and see charts पे पीछे कि अगर मैं ये करता तो क्या return. How do you do that? What tools do you use? TradingView एक बहुत popular
चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसी पे यू कैन कोड वेरी बेसिक एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स Like, which code for you. Just what is the give them the strategy? rules. Like, give me an example of a strategy that you can code and it will backtrack 10,000 and look There at. are multiple, there are millions of strategies. Anything Okay, there, one like there are example. many indicators. So you'll say like P ratio of suppose. Is that an indicator? Not exactly. Okay, then P what is an ratio is indicator? used for investing, active trading के लिए नहीं. Let's say moving average. Moving average. It's Alright. very simple कि वो last 50 days पे set कर दो, 50 days की price का average line बना देगा. So a momentum trading strategy could be कि when price crosses the moving average you will buy and when it crosses below the moving average you will sell. तो उसको automate करके डाल दिया. And you can see कि over the last 3 months अगर मैं 1000 times price ने ऊपर नीचे किया तो मैं कितना बनाता. Right. That's one of the strategies that you can implement. Yeah, There's a it's lot one of of the most strategies. simple. Yeah, it's one of the most. This doesn't work by the way, but simplicity Doesn't work. All right. Acha, quick question. Ratan Tata recently died. What, like, did you trade that day? What is the situation like? I had open positions, but this particular event did not impact the markets much. Oh, okay, cool. I just wanted to see because I was not following any of these things, but I saw. I thought if he died, he'd done a lot of great work. So it might impact the markets and how. No, he was not a active person in the Tata board. Na? He was not the one making decisions. They had already done very good succession planning. Yeah. So it didn't matter much. Okay. For the markets, it was like very. Yeah. It was sort of like discounted already. He's an old aged man and he has succession already in place. True. So the markets already took that into account when they were pricing everything. All right. That's good. I mean, what are these talks about? Like that you give. What is it? Are they teaching? Are you analyzing positions? Are you talking about your research? Like these talks that you do, let's say bi-weekly or weekly. What do you talk about? The sessions. Yeah, the sessions. We actually teach people each and everything from the very basics. So let's talk about the first 5 to 10 sessions. What do you teach? First 5 sessions we'll teach people like how to open the charts on TradingView, what is a broker, what is NSE, what is the stock market, what is share, what is a company. We'll tell them what are candlesticks, how do prices move, how does one buy shares, how does one sell shares. The very basic things we'll start from. Like even if a person knows nothing, literal zero, and come and attend and they can start trading. Have you seen people do well like after attending sessions? Yeah. Do you know any can you tell any stories about that? Bro, there are a lot of people who started in campus and who made it in while they were in campus. There are my seniors, there are my batch. Bro, me myself, I started trading a long back, but before I was on campus, like you can say if I know 100 points of trading as of now, 90% of that was learnt on campus. I love how you just said 100 points of trading, not 100%. If I know 100 points of trading. Okay. Okay. So anyway, so you learned 90% of it on campus, and people have been doing well as well. Yeah. So it takes, but I'm guessing it takes like time out of your daily chunk of like. How do you trade actively if the markets are open during your class hours? Like I don't attend. You don't attend classes. I never attend. Taking advantage of all the 0% attendance policy. BITS is the best place you could be in if you want to be a trader in engineering college. For anything, yeah, it gives you such a lot of free time. Yeah, it's a lot. Correct. And like you can explore a lot on your own. And like that exploration really matters. Exactly. Instead of people pushing you and ki ye kar, wo kar, you just gravitate towards whatever feels natural to you. And people naturally gravitate towards things. I mean, okay, not always, but like I've seen people gravitate towards things that they have an edge at. Right? And if you have an edge at it, you're going to do better than most people. Exactly. Because you're better than average initially only. So if you have some edge, just take that. Yeah, so, but again, different types of traders that you talked about. So, again, going back to that. So it was basically that there's intraday traders. Yeah. And what are most of our batchmates or people on our campus? Are they intraday? Are they like most of our batchmates are video game players. Oh my god. A lot of them are video game players. See, I'll tell you, there are around 5,000 people on our campus right now. Out of 5,000, I would say roughly around 3,000 would have a Demat account. Around 1,000 would be trading actively. 3,000 is a lot of people. Would have a Demat account. Yeah. But 1,000 would be trading actively across the 4 or 5 batches. Yeah. 1,000 is still like, so you're seeing 1 and 20% of the people on campus trade. I think so. Because like it's a bull market frenzy, everyone is trading. Everyone is trading. Yeah. It seems very cool. सबका बंदा वो होता ना मंदी में सब आ जाते थे वैसा ही सीन है अभी
तो out of 1,000 people, I would say the people who I would consider traders, or even who have a potential to become good traders, who are not in that video game playing zone, would be less than 20. Less than 20. Yeah, across 4 or 5 batches. So you say that's really less. And I'm being very optimistic with You're being very 20 number. Wow. I would say in single digits, but ठीक है, कुछ होंगे जिनके बारे में मेरे को नहीं पता, जो hidden है, जिनसे मैं कभी मिला नहीं. So I'm bringing it 20. So without saying names, let's say, are there people from our batch who are doing really well? And like, what do you see them doing differently than people who are, okay, let's say out of the 20, there'll be like 5 people who are doing exceptionally well. Yeah. Right. There's 15 who are doing good. Right. What is the difference between those 5 and those 15? Thinking it as a long-term game, again, the same thing. Like, if you feel I'm going to be a trader for the next 10 years, you'll actually put in the effort and the passion to make your things work in a very systematic manner. वरना तुम सट्टा करते हो यार. इसमें सट्टा कर रहे हो. हाँ, मतलब सुबह सुबह क्लास जाते जाते फोन पे मेस में ट्रेड डाल रहे हो. मेरे को ट्रिगर होता हूँ, मैं गुस्सा आता है, पता है. मैं जा रहा हूँ मेस में बैठे बैठे, मेरा कोई दोस्त मेरे से पूछ रहा है, भाई मैंने ये कॉल खरीद ली, ये पुट खरीद लिया, मेरे को फोन पे दिखा रहा है. लाइक ब्रो कैसे कर रहा है, मेरा ट्रिगर हो जाता है. हाँ, because reading it so seriously. It's so unprofessional. तुम फोन पे वो चार्ट भी नहीं देखते, पता है. चार्ट भी नहीं देखते, just ऐसे. हाँ, वो रैंडमली प्राइस टिक हो रहा है, 100 रुपए की कॉल, 205 रुपए की कॉल, खरीद लिया, 108 की हुई बेच दिया, 110 की हुई वापस खरीद लिया. Just चल रहा है. हाँ, तो पर फिर ठीक है ना, मैं गुस्सा करके क्या ही करूँ, उनको वीडियो गेम खेल. हाँ, मेरे को एक तरह से गुस्सा आता है, उस पर दया आती है यार कि क्या चल रहा है, इनको सिखाओ थोड़ा, मतलब बताओ. मैं उसी फिर शाम को सेशन बुक करता हूँ ऑनलाइन. हाँ, कुछ तो बताओ इनको, बिकॉज देखो यार, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई वुड से 1 or 2 मार्केट साइकिल्स. मार्केट साइकिल इज टिपिकली 5 to 8 years का. तो यहाँ पे अभी कैंपस पे जिन्होंने भी स्टार्ट किया, मोस्टली सब कॉलेज आके स्टार्ट करता है. 11th स्कूल में बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मौका भी मिल पाता है कि, या पता भी होता है क्या करें. बिफोर 18 यू कांट इवन ओपन अ डीमैट अकाउंट ऑफ योर ओन. तो कॉलेज आके इन्होंने स्टार्ट किया, दे हैवंट सीन मल्टीपल मार्केट साइकिल्स. They have experienced only this bull run which we have been witnessing since the past 3-4 years. उनको लगता है कि भाई करोगे हो जाएगा, बनते जाएगा बस. हाँ, बट वैसे नहीं चलेगा यार. मेरे को पता है वो एक दिन आएगा और एक दिन सब डूब जाएगा. हाँ. और जितना डूबेगा फिर कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा जो ओवर लेवरेज्ड है, and I don't want that to happen to my friends. Do people option trade as well? मतलब ओवर लेवरेज बोल रहा है. तो a lot of people do options trading. Mostly options ही करते हैं. Options में भी naked buying करते हैं, if anyone knows what it is. Yeah, really? Naked option buying. No, like nothing. No strategies. Just randomly वो प्राइस देख के टक 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 वीडियो गेम. That's what I'm saying. It's a video game. That's very, very risky. They see red and green, red and green, red and green. They're addicted to it. I am surprised, honestly. I thought people at our campus would be more calculated. They're hardly like single digits में traders. Wow, that's surprising. Good traders तो I'm expect कर ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा. But like even the people who have the potential कि वो अभी सीख रहे हैं और 1-2 साल करके सीख जाएंगे. So what I understand is कि you're saying कि they don't, like, you know कि there will come a long there'll come a day where everything falls, or like you'll have a negative cycle, let's say. What do you call it? A bear run, what's it? Right? Anything. So any bad day. Yeah, any bad day. So I think because of you have a longer term perspective, that helps with that. कि you know you are ready for that. I've seen the bad days myself ना. So I know कि जब वो आता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता. It is helpless. और वो हर सबके बार फेज में आएगा. But it's against statistics. Normal distribution अगर बताओ, like वो ऐसे ग्राफ बनता है. So मीन पे मोस्ट ऑफ द डेज रहते हैं. देयर आर एक्सट्रीम्स पे बहुत कम डेज वेयर यू विल हैव वंडरफुल डेज, एंड देयर आर अ वेरी फ्यू डेज व्हिच विल बी द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. तो पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दिस साइड ऑफ द ग्राफ एज ऑफ नाउ, बट जब ये आएगा दे आर नॉट एबल, दे वोंट बी एबल टू बेयर इट, दे वोंट बी एबल टू सी इट. So how do you take the psychological toll? Like how do you deal with the psychological effects of that? Like, do you have anything experience or advice around that? A lot. Basically, actually मैं सेशंस में साइकोलॉजी सिखाता हूँ. Let's do psychology. That is my sort of forte कह लो. Okay. Because I have been through a lot. मतलब मैंने जब स्टार्ट किया मेरे पे नहीं था कुछ भी. Right. Literally मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास. I didn't know what money was. और मेरा फर्स्ट लॉस 5,000 रुपए का था. That's a lot of. And that was a lot of money for me. और फिर रोज 100-200 रुपए बनते थे कभी, तो मैं बहुत खुश होता था. मेरा पहला मैं बताऊँ, अभी सुनेगा तो बहुत अजीब लगेगा, बट आई थिंक जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा रिलेट करोगे तो समझ जाना कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो और मेरे दिन में 10 रुपए बने थे पहले. कि ट्रेड करके मेरा पता है पहला ख्याल क्या था, कि 10 रुपए बन गए भाई, चौकोबार आ जाएगी. चौकोबार आइसक्रीम का वो आ गया. तो दैट वाज व्हाट माय साइकोलॉजी वाज. वर्ड से जब मैं आज देखता हूँ तो ठीक है, बहुत चेंज आ गया. मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अब मैच्योरिटी आ गई थोड़ी सी. फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क ही नहीं पड़ता. मैं देखता ही नहीं है. It just
you know कि if you've done the correct strategy analysis. Because I know कि I will be placing the same trade 1,000 times. Yeah. एंड आई नो कि मेरे को यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनना है. सो अभी वाला ट्रेड मेरा उसमें कहाँ बैठ रहा है, इट डजंट रियली मैटर. Oh, right. You're thinking not this individual, like you said. Exactly. One trade can be random. Over 1,000 trade, it becomes. I know this is a random trade. Yeah, you get your alpha over the long Exactly. trades. I know over 1,000 trades, there will be 50 trades जहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट बन जाएंगे. There will be 50 ट्रेड जहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट का लॉस होगा. और बीच में अराउंड 450 ट्रेड जहाँ पे मैं प्लस माइनस 20 पॉइंट्स में रहूंगा. तो ये वाली ट्रेड मेरी 80 पॉइंट बढ़ी या 100 पॉइंट का लॉस दिया, it doesn't really matter because I know it will average out over time. Correct. And it does. हाँ. You have seen that. And like, so developing these strategies, does it come with time? Again, like I go back to the same education ka question. So you cover these strategies in your sessions. Do you teach that? Who teaches that? So you We do this? teach, हाँ. You teach that. And We teach our strategies and like there is one thing which we believe in traders और मैं इससे बहुत ज़्यादा दिल पे लेके चलता हूँ. We don't believe in giving people fishes. We believe in teaching people how to fish. Yeah. हमारा ये कि यार अगर मेरे से भी लोग पूछते हैं भैया स्टॉक बता दो या आई वुड से कि हाँ ठीक है आई कैन सी द नेक्स्ट इकोनॉमिक अपटिक या डाउनटर्न, तो मेरे को बता दो कब होगा. भाई मैं बता दूंगा तुम्हें, चल तो अभी कर भी लेगा 5 साल बाद क्या. correct. Yeah. तू वापस बैंकरप्ट होके सड़क पे बैठा Because if they're doing रहेगा. options. एग्जैक्टली. यू डोंट नो व्हाट टू डू ना. तू इस बार अभी मैं बताऊंगा तू 1 करोड़ रुपए बना लेगा, बट 2 साल बाद तू सड़क होगा. Correct. You need to learn it. एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा. हाँ क्योंकि भाई अभी तो मैंने बना लिया. एग्जैक्टली. हाँ. So I'll take them to a very methodological process कि तुम्हें कैसे कैसे चलना है, and I teach them how to fish so that they can make their own strategies. Correct. That's what my seniors did to me. Can you discuss any strategies that you use? हाँ, actually there are a lot. मैं मतलब openly बता देता हूँ मेरी कुछ strategies. There are some strategies जो मैं नहीं बताता. हाँ, so anything that you shared openly? हाँ, I trade momentum. So RSI divergence पे एक strategy थी मेरी. And what is that? RSI is an indicator basically, relative strength index. And उस पे वो momentum indicator which tells you the momentum of the price. Okay. उस पे वो एक relative chart बना के देता है. 0 to 100 में oscillate करता है. So उसमें divergence देख के price के साथ एक strategy थी. Okay. That is one of the things that has. Yeah. Did that work well for you before या फिर वो नहीं काम किया? That was one of the first strategies which I traded. वही 19 to 21 की period में, and that was the only strategy which I came to college with. अच्छा. And then everything else you built in college. Yeah, and that's a very great story. मतलब I actually want to share this to my viewers. क्योंकि जब मैं कॉलेज आया था ना, देखो I came in 22 के October. I had already touched my break even. Yeah. I had started making profit out of this RSI divergence का strategy. It's not the usual one जो YouTube पे सिखाते हैं, थोड़ी सी modify की थी. तो I was on cloud 9. I remember the first session जो traders का हुआ था, orientation session जो seniors ने लिया था उस टाइम पे. I was attendee. वही 500-600 बच्चे जाते हैं, मैं उसमें था. तो पीछे बैठा था एकदम और फुल स्वैग में भाई. हाँ, कि अपन ने तो ऐसा बनाया. हाँ कि ये लोग सब 500 लोग क्या बैठे हैं, मेरे को पता है, मैं ट्रेडर हूँ, क्या सिखाएंगे ये. ठीक है, मैं उस माइंडसेट में था. I was very egoistic. ये मैंने भैया लोग को भी बताया नहीं है. Like even my seniors don't know कि मेरे को ऐसा सोचता. अभी बता रहा हूँ कि this was what I taught. And seniors came up to me session के बीच में. They are very friendly. They talk to people and they actually figure out कि किसको क्या दिक्कत हो रही है या कौन किस लेवल पे है, वो उस हिसाब से गाइड करते हैं. तो उन्होंने मेरे से बात किया. I was very cocky at that point of time. कि ठीक है, मैं वैसे मुंह पे नहीं बोल रहा था बट अंदर लग रहा था कि क्यों बोल रहा है, मेरे को क्या बात करेंगे, क्या ही सिखा देंगे भाई, कॉलेज के बच्चे क्या ही ट्रेड करेंगे. मेरे भाई कॉलेज में क्या ही ट्रेड कर लोगे भाई तुम. कोई नहीं कर सकता. कॉलेज स्टूडेंट्स में 19-20 year olds, I am not expecting them to be good traders. And I am sort of correct because 5,000 के कॉलेज में 4 ही ट्रेडर है ना. I don't know, I didn't know कि वही 4 मेरे सामने खड़े. ठीक है. एंड देन ग्रेजुअली तो मैंने इंडक्शन भी वैसे ही दिए थे. हाँ कि बस मैं हूँ, तुम ले लो. हाँ, इंडक्शन में मेरे से पूछा था कि कैसे कैसे करते हो, तो मैं बोला ये चार्ट ऐसे किया था, देख लो ना. समझ जाओ ना. They took me in. और फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली स्टार्टेड इंटरैक्टिंग सीनियर्स जो एक्चुअली गुड ट्रेडर. मेरे को रियलाइज हुआ कि फक बहुत कुछ है इसमें. तो बहुत कुछ है इसमें. मेरे को कुछ नहीं पता. नहीं. I am literally at 0.00001 पे हूँ आउट ऑफ 100. वो कुछ नहीं पता मेरे को. और फिर अगला साल 1.5 साल. हाँ, they were the best seniors I've ever met on campus. Really? हाँ. What did you learn from them? Everything. I think they love me but I respect them a lot. Actually मतलब यार at this point of time a lot of love and respect. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कुछ भी हो ना, लाइक कोई इवेंट हो अच्छा या कोई भी
माइलस्टोन अचीव हो जाए, कुछ हो जाए, दे आर द फर्स्ट पीपल जिनके साथ मैं सेलिब्रेट करना चाहूँगा, जिनको मैं बोलूँ. That's amazing. एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रेडिंग सिखाई या उन्होंने कुछ बताया, बॉन्ड बहुत क्रेजी बन जाता है. एंड ट्रेडिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफ एक्चुअली. बता. मैं बताऊंगा, यू कांट बी अ गुड ट्रेडर इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड द वे यू थिंक इन लाइफ आर एक्चुअली वेरी रिलेटेड. तुम बाय नेचर कैसे पर्सन हो ना, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ट्रेडिंग, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ऑर्डर बुक. अच्छा, खराब लोग शॉर्ट करते हैं. हाँ, अगर तुम खराब हो तुम एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे. देखो, इफ यू आर नॉट हम्बल, इफ यू हैव ईगो, इफ यू डोंट नो व्हेन टू बी काइंड, इफ यू डोंट नो व्हेन टू बी फॉरगिवफुल, इफ यू डोंट नो व्हेन टू टेक अ हिट, इफ यू डोंट नो व्हेन टू हिट बैक अग्रेसिवली, तो if you know all that, लाइफ में इफेक्ट होता है. तो जो भी, अगर तुम लाइफ में अच्छे इंसान हो तभी तुम ट्रेडिंग में भी अच्छा कर पाओगे. I'm one of the best people. Yeah, best people. One of the best. कोई ऐसे एकदम सीनियर याद है? हाँ, कोई एकदम इम्पैक्टफुल सीनियर याद है? बहुत ज्यादा. नाम देना है? हाँ, मतलब तो 20 साल बाद देखेगा ये वीडियो. पता ही होगा. मतलब 20 बैच में विराज भैया थे, विराज बराल. ऑल ऑफ माई सेकेंड ईयर मैं उन्हीं के साथ बैठा रहता था. लाइक उनके रूम पे जाके मैं बैठ जाता था बस ऐसे ही, और वो मेरे को बताते रहते थे. वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट. बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी हमारी, अभी भी है. लाइक उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था मेरे पे. अच्छा, बिकॉज यार उन्होंने इतना अच्छा जूनियर बना के रख दिया. अब मैं बहुत ज्यादा बोल दूंगा शायद, बोल. बट वही है कि ही एक्चुअली सॉ कि देख अभी मैं किस स्टेज पे हूँ, इसको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए. इसके लिए अभी इस स्टेज पे क्या बेनिफिशियल होगा. सी इफ अ ट्रेडर इज लेट्स से एट लेवल 2 और तुम उसको लेवल 5 की चीजें बता दो ना, इट्स वेस्ट फॉर हिम. इट कैन एक्चुअली बी डेट्रीमेंटल टू हिज हेल्थ. करेक्ट. बट अगर वो लेवल 2 पे और तुम एग्जैक्टली उसको लेवल 2 की चीज दे पा रहे हो और उसको धीरे धीरे ग्रो करा पा रहे हो, उन्होंने मेरे साथ वही किया. So are you trying to do that for your juniors? Exactly. Like if I can be even 20% of what he did to me, वही मेरा लाइफ का है, to give back to my juniors. Yeah, that's how all the That's the motivation भाई, कि मतलब मेरे को मेरे सीनियर से जो भी मिला फिर उसका आधा भी मैं वापस give back कर पाऊँ अपने जूनियर्स को. तो it will really be something completely worth it. Feels like a duty. हाँ, अरे मेरे को पता है यार, Responsibility लगती है यार. You want to pass it forward. Exactly. Bro, 20 batch had amazing seniors actually. Like even I had that experience. And he also learned it from one senior from 18 batch. अच्छा, ऐसे alternate होता है क्या? तो 24 batch के लोग anyways, I mean, how is like this, like अभी जो Zero था, Robinhood, I don't know, Robinhood इंडिया में चलता है क्या? Robinhood इंडिया में, US. जो भी है, हाँ, अब जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है. लाइक डू यू सी, अब तुम्हें पता है वो लोग बस ब्रेकफास्ट खाते खाते डाल देते हैं. Has that had a positive impact तेरे हिसाब से, या फिर you know एक तो accessibility बढ़ गया. Is that necessarily a good thing? Accessibility is a good thing. मेरे को मार्वल खड़ा है. With great power comes great responsibility. Accessibility is good, but knowledge and information also. अब देखो यार, अगर तुम यही वीडियो गेम खेल लो ना, ब्रोकर्स का तो बहुत फायदा हो रहा है. They are taking hard cold 20 रुपए कैश होम. तुम्हें पता नहीं चलता तुम 20 रुपए ब्रोकरेज दे रहे हो, बट वो 20 रुपए हार्ड कोल्ड कैश है जो दूसरा तुमसे घर लेके जा रहा है. करेक्ट. हाँ, मैंने ट्रेड बुक्स देखता हूँ लोगों के, ये जो स्कैल्प करते हैं, गेम खेलते हैं, वो नेट उतने लॉस मेकिंग होते भी नहीं, पता है. ऐसा वन ट्रेड बुक, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, बट उसका ट्रेडिंग कैपिटल वाज अराउंड 80,000 1 लाख. ठीक है. एंड उस साल का 1 साल का डेटा निकाला मैंने उसका ट्रेड लॉग से, उसका नेट 1 लाख रुपए पे सिर्फ 200 रुपए का लॉस था. तो ब्रेक इवन था, एंड दैट्स वेरी गुड. दैट मींस यू आर अ ब्रिलियंट ट्रेडर इफ यू कैन ब्रेक इवन. मतलब यार वो होती है, कर्व होती है कि व्हेन यू फॉल डाउन, व्हेन यू ब्रेक इवन एंड देन यू कीप राइजिंग. अगर वो ब्रेक इवन पे, नाउ दैट्स ओनली अप पे. करेक्ट. बट 1 लाख रुपए के अकाउंट पे 200 रुपए का लॉस था और 78,000 के ट्रांजैक्शन कॉस्ट थे. 78,000 रुपीस के ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो बेसिकली उसका 1 लाख का अकाउंट 20,000 रुपए का बचा था. 80,000 रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट थे, बिकॉज वो वीडियो गेम खेला था. 20 रुपए करके 80,000 रुपए दे चुका था वो. भाई, it's crazy. He's at -80%. -80%, yeah, but he won't realize that क्योंकि उसको, because you don't realize the charge. छोटा लग रहा है. Transaction cost slippages are the main killers of your profitability. Because every time you have to make transaction cost से भी ज़्यादा पैसे, exactly, so that you can make money. To take this into account when you are actually creating a strategy. Yeah. और अच्छा मेरे को बता, at what corpus size, I don't know what do you call it, वो जो capital whatever, like does it start making a significant difference कि
see, I don't think 500 रुपए पे if you're trading, it makes that much difference. Whereas, I mean, I'm sure 10 crore पे अगर trade के तो बहुत फर्क पड़ता है. At what point have you seen कि college में, people start to get more into it या फिर they take it more seriously? इतना पैसा लगा है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, सबका अलग अलग होता होगा. पर एक general trend, what have you seen? पीपल टेक इट सीरियसली यार. आई मीन वही मेंटल बैरियर वाली चीज. किसी के लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी होती है, किसी के लिए 10 लाख रुपए बहुत छोटे होते हैं. तो 1,000 रुपए वाला बंदा भी बहुत सीरियसली लेता है उस चीज को. इट डिपेंड्स कि वो लॉन्ग टर्म वही सोच रहा है कि मेरे पे आते हैं लोग यार 1,000 रुपए का पोर्टफोलियो है और 1-2% गिरा मार्केट, जो भी 10 रुपए का लॉस है बंदे को, एंड इट शिट्स कैट. तो 10 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात है. ही हैज नेवर सीन 10 रुपए का लॉस. यू आर लूजिंग 10 रुपीज. अगर 10 रुपए का नोट खो के आ जाए तो गांड पड़ती है भाई. तुम जाते हो सड़क पे ढूंढने. करेक्ट. अब तुम ढूंढ भी नहीं सकते, तुम्हें पता कि चला गया. तो हाँ, वैसे लोग हैं. बट डिफरेंस मैं बोलूँ कि बनाने लगता है. यू कैन एक्चुअली सी इट्स वेरी इजी. Realistically, you don't expect to make more than 60 to 80% an annum returns. 80% annum after your costs and everything. हाँ, net. Realistically, that's like one of the best trading figures which you can achieve. अच्छा, what do most people, not, I'm saying about the 20 people that trade within our campus, उनका कितना होता है? Around this. So 60-80%. हाँ, around this. मतलब किसी bad year में it can be 20, 30, 40. किसी good year में it can be 150, 200, 300. Over the span of let's say 4 years, it might be in that. Somewhere around average. Realistically, वही है 40, 50, 60, 80%. अगर तुम average out. But if you're compounding that much, it makes a big difference. That's what ना. You have to think it as a long term career. Correct. कि मैं 60% पे 10 साल तक कंपाउंड मारूंगा. 60% 10 साल कितना होता है? रुक जा एक सेकंड. Let's see how much time does it take you to calculate this. देखो आता है क्या पहले से? और क्या फॉर्मूला होता है यार. हाँ, 1.6 to the power 10. Small tricks. ये क्या है? 109.95. तेरा अच्छा दिख गया. तू कर. Let's say 60%. There is a rule of 72 basically. Okay. So अगर 72 को CAGR से डिवाइड करो तो कितने साल में पैसा डबल होता है तो पता चलता है. तो अगर जैसे 36% से कंपाउंड करो और 72 तो हर 2 साल में पैसा डबल हो रहा है. अच्छा. तो 4 साल में 2 की पावर 4 हो जाएगा. 2 की पावर 4 टाइम्स. 2 4 8 16 गुना हो जाएगा. 36%. करेक्ट. ओ ऐसे कैलकुलेट करते हो. फिर 108 पे 3 टाइम्स पैसे होते हैं. शॉर्टकट्स. हां, मतलब मेंटली अप्रोक्सीमेट. हां, सही है यार. बहुत पैसा है. मतलब भाई अब मेरे भी अभी जो कॉर्पस है, कैपिटल है, जो भी है, सब कंपाउंडिंग से ही बिल्ड हुआ. मैंने भी इतना ही कैपिटल से स्टार्ट किया था, छोटा 5, 10, 15 हजार, बट वो फिर बढ़ गया धीरे धीरे कंपाउंड हो गया. करेक्ट. सही. एक्सेलेंट. मैंने सही तो कैलकुलेशन किया ना. 1.6 टू द पावर 1.6 टू द पावर 4 रहेगा ना 4 साल में. ये 4 साल में. हाँ, 6.5. So 6.5 times. Yeah, 6 times. Bro, that's a lot. Like 6 times of your initial money. That's crazy. Yeah. And you'll have a couple of good days in between. जहाँ बहुत मजा आती है. हाँ, जहाँ पे हो सकता है पूरा कैपिटल 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए. लाइक एक दिन लगता है. एक दिन भी नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं ऑनेस्टली. अगर अच्छा. हाँ, मतलब एक ऑप्शंस की ट्रेड लेते हो तुम, 10 मिनट में स्पाइक आ जाती है, 10 गुना हो गया पैसा. होने को हो सकता है. हाँ, होने का तो भाई कभी सेलिब्रेट किया ऐसे एकदम क्रेजी कोई एकदम डीप में से? तो यार बीच में एक्चुअली डू एक स्पेंड थ्रिफ्ट वाली चीज है मेरे अंदर. वो सब होनी चाहिए. आई थिंक वो अच्छी है. बीच में आता है नशा मेरे को. मैं बोलता हूँ नहीं भाई आज तो पैसा खर्च करूंगा. करना है. हाँ, जाता हूँ मैं ऐसे खर्च करके आता हूँ. फिर सोचता नहीं कितना खर्च हो रहा है. व्हाट डू यू बाय? चीजें रैंडम चीजें. जैसे भाई बहुत ही रैंडम होता है. 5 स्टार होटल बुक कर लूंगा, जाके बैठ जाऊंगा बस. पता नहीं क्या, बस जाके बैठ बस पैसे खर्च कर देते हैं. मॉल पे चला गया, कुछ भी खरीद लेता हूँ. या अभी जैसे भाई कसिनो चला गया था, तो पैसे खर्च करके आ गया, उड़ा के आ गया. सही है. रैंडमली. बट बहुत कम होता है. हाँ, बीच. अरे पर ठीक है. जैसे वो उसका मेरे को स्पा बहुत ही रिसेंटली एक्सप्लोर किया मैंने. स्पा में बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट मजा बहुत आता है. वो सोना करने में, स्विमिंग में, जकूज़ी में बहुत मजा आता है. सही है भाई. बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है. हाँ, अभी तो और पहले पैसे नहीं थे करने के. अभी धीरे धीरे वो स्पेंडिंग कैपिटल बढ़ रहा है ना, कि अभी पहले ये फिर वो, अभी स्पा. अभी वैसा लगता है भाई कि अभी क्या इतने रुपए का ठीक है, ये कैसा लेट हो गया. हाँ, एक स्टॉप लॉस, एक ट्रेड है ये. अच्छा, ओ अभी ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं, वो नहीं होता. यू एक्चुअली डीमटेरियलाइज फ्रॉम मनी इज जस्ट अ नंबर एट दिस. मतलब एंड इट्स नॉट बिकॉज भाई अंधा पैसा हो गया. इट्स बिकॉज इतना देख लिया ना. लाइक 5 साल 6 साल से ज्यादा ही हो गया, 7 हो गया, पता नहीं जो भी. अगर तुम डेली यू आर winning a certain amount, daily you are losing a certain amount, तो इतना इमोशनल हो गए ना, at some point of time you become neutral to it. हाँ, फर्क नहीं पड़ता. तो जब एक्सपेंडिचर भी हो रहा है या पैसा आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता.
how did you treat 7 years ago? You must have been like below the demat account. पापा क्या account पे trading होती थी? हाँ सही है. तो पैन कार्ड नहीं. पापा ने हाँ भी बोला क्या? यार उन्हीं के पैसे लिए थे. क्या? पापा को 6 महीने यही तो किया मैंने. डिमोनेटाइजेशन से लेकर 17 के जून तक 6 महीने. तो मैं बुक्स पढ़ता था बहुत सारी. भाई तुम्हें ज्यादा कि उनसे बात करता था. फादर हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड. तो उनसे सब बात करता था. Did he have any financial background? No. Did he trade? 2002-3 अपने टाइम पे वही थोड़ा बहुत सब करते हैं. वही उस टाइम भी बुल रन आई थी. ऑल रिटेलर्स करते तो उन्होंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत किया था. उनको बहुत मन था. ही वाज आल्सो वन ऑफ द फ्यू रिटेलर्स. वैसे ही उन्होंने लाइक जीरो से स्टार्ट किया एंड ही मेड सम 3-4 लाख रुपीस, जो 20 साल पहले बहुत अच्छी बात है. 20 साल पहले 3 लाख रुपए मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज के 12-15 लाख रुपए हो गए. Do you have some mental math for this as well? Like how? मतलब 6-7% इन्फ्लेशन पे लोगे तो अराउंड 12-13 लाख आता है. अच्छा. इन्फ्लेशन है तो अगर उतना बना लिया और फिर जीरो हो जाता. मेरे को पता है वो साइकिल. तो उनको ही पता था. बट उन्होंने हमें रोका नहीं, इनकरेज ही किया मेरे को हमेशा. मतलब बोलते जो करना है करो. इनकरेज किया. चलो बढ़िया है भाई. मतलब 7 years से योर ट्रेडिंग इतना. सो अभी क्या है, मतलब अभी स्पार्क पे स्पेंड करना शुरू किया है. व्हाट इज द नेक्स्ट लाइक माइलस्टोन? व्हाट डू यू वांट टू डू? लाइक अभी नेक्स्ट स्पेंडिंग माइलस्टोन है, कुछ सोचा है दिमाग में? स्पेंडिंग माइलस्टोन नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए. वो बहुत गलत बात है. वो आई एम जस्ट नॉट ashamed of it. Maybe I should be. I don't know. ठीक है यार, अब कमा भी रहा है तो थोड़ा बहुत इज ओके. बट आई मीन सी आई थिंक तेरे लिए इट बिकम्स की ठीक है अभी आई नो आई कैन मेक इट बैक. हाँ उतना फर्क नहीं पड़ता भाई. या दैट्स फाइन ब्रो. लाइक इट्स गुड ओनली. लाइक अच्छा मेरे को एक बात बता. लाइक तो these sessions are the way that you teach newcomers. तो now we talk till like session number 10 to 20 30 क्या होता है? मतलब अभी तुम intermediate let's say stage में हो तो what do you learn there? हाँ एक्चुअली बहुत पर्सनलाइज करते हैं. अच्छा. बिकॉज तब तक नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस हो जाते हैं एंड वी आइडेंटिफाई किन में पोटेंशियल है ट्रेडर बनने का और कौन सा बंदा क्या करना चाह रहा है. लाइक जब तुम मार्केट में आते हो ना, मार्केट में अलग अलग एजेंडा से आ सकते हो. यू कैन ट्राई टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, यू कैन ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर, यू कैन ट्राई टू बी अ फंड मैनेजर, यू कैन ट्राई टू जस्ट लर्न अबाउट इट ताकि तुम अपनी फाइनेंसेस को ढंग से संभाल पाओ. तो बहुत अलग तरह के एजेंडाज होते हैं. तो हम समझ जाते हैं किस बंदे का क्या एजेंडा है, उसके हिसाब से वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उसको कब किस चीज की जरूरत है, वो किस लेवल पे, उसको उस लेवल के एडवाइस देता है, नॉलेज देते हैं, वैसे उससे इंटरेक्शंस करते हैं. राइट. सही. एंड अच्छा सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बिटवीन traders, investors, fund managers तो नहीं होगी ज़्यादा. हाँ. तो like what is the distribution of people? Let's say out of 100 points. कैसा है? Yeah, most of the people initially don't know what they are doing. They are like हाँ कोई सिखा रहा है, हमें कुछ नहीं पता, वो सीखना है. And it's very later on that they actually choose कि हाँ मेरे को इस चीज़ की calling ज़्यादा आ रही है. प्रो ट्रेडर्स लोग बनना चाहते हैं बट जब उन्हें पता चलता है क्या कैसा है बहुत लोग नहीं बनना चाहते. बहुत कम लोग होते हैं इक्के दुक्के बैच में जो एक्चुअली उस चीज को परस्यू करते हैं. बाकी फाइनेंशियल अपना लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, अपने पैसे मैनेज करने के लिए, एंड उसमें कोई खराब बात नहीं. वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू है कि तो बाद में भाई जॉब करोगे तो पता होना चाहिए अपनी सैलरी का क्या करूँ. करेक्ट. हाँ क्योंकि अभी इन्होंने इतना पैसा आने प्लेसमेंट होने के बाद इंडिया का पता है तेरे को सबसे खराब सिचुएशन क्या है? मतलब वन ऑफ द वर्स्ट फियर इज क्रेडिट, इंक्रीजिंग डेट, क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज वाला. हाँ क्या? हाँ अभी आरबीआई अगर देखोगे तो हर जगह बैंक्स और एनबीएफसीज पे रेस्ट्रिक्शंस वही लगा रही है बहुत सारे कि लेंडिंग थोड़ा सा संभल के करो भाई, ऐसे फ्री में पैसा मत बांटो क्योंकि डेट बहुत बढ़ रहा है. हाँ लोग बहुत इजीली क्रेडिट कार्ड पे लोन्स ले रहे हैं, हर चीज ईएमआई पे जा रही है, नेट डेट बहुत ज्यादा है. वो पे लेटर वाला. एग्जैक्टली वो पे लेटर वाला. तो एंड दैट इज अ फाइनेंशियल वो साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल, स्पाइरल. वो एक बार चलनी शुरू हो जाती है फिर वो बंद नहीं हो पाती. अच्छा तो दैट्स एंड ट्राई गेटिंग डीपर एंड डीपर. तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर 15 साल लग जाते हैं, यू आर ओल्ड इनफ. तो उसमें कभी नहीं जाना है, उसको कैसे अवॉइड करना है, हाउ डू यू मैनेज. अगर तुम उतना कर पा रहे हो, आई थिंक यू आर अ विनर इन लाइफ. या मतलब एटलीस्ट तुम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहा, स्टेबल रहो. हां यू डोंट नीड टू यार पुट इन 10 hours डेली इन द मार्केट. वो कुछ करने की जरूरत नहीं. यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स कि भाई इतना पैसा है, मेरे को इतना डेट लेना है, इतना डेट नहीं लेना, या फिर मेरे पास कितना एक्चुअली पैसा है, वो कितना इन्फ्लेशन से कम होगा, मेरे को उसको कितना इन्वेस्ट करके बढ़ाना है. करेक्ट. हाँ बस so you have to at least make more than inflation. बस उतना भी कर लिया तो हाँ is a good thing. If you have that acceptance and understanding, it's more than you are a winner. और अच्छा मेरे को बात बता, what has your college life been like? Last 2 साल सिर्फ ट्रेडिंग किया है, कॉलेज में क्या किया? Did you join any clubs apart from traders तो? हाँ I was in Synapses, मतलब बायोलॉजी का एसोसिएशन है, बायो के बच्चों का. उसमें था मैं. इन्वेस्टमेंट फंड में हूँ मैं. हाँ ओके.
इन्वेस्टमेंट फंड एक्चुअली एक पोर्टफोलियो मैनेज करता है. नहीं वो क्या है, क्लब है? इट्स अ स्टूडेंट बॉडी. स्टूडेंट बॉडी. अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दिस. कौन चलाता है? कौन, हु इज दिस लाइक रनिंग दिस? उसका भी मतलब सीईओ तो मैं ही हूँ. अच्छा. तो किसके पैसे? लाइक who's money doing? it's the money initially received from BITS के alumni and admin. Wait, what? So this is a student run fund? Yeah. And like you guys, yeah, we manage that portfolio. is it public corpus जो हमारा fund capital है? Public नहीं है. Bro, I have never heard of this in 3 years. Yeah, it's not that well publicized as of now. You want to be well publicized? Yeah, हम अभी इस साल मेरे को मिली उसकी like PR position जो भी, तो हम कर रहे हैं. उसमें सेशंस लेते हैं, वहाँ पे भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाते हैं लोगों को. एंड लाइक हम क्लब उस IF की अलग फंक्शनिंग है जस्ट टू मैनेज दैट पोर्टफोलियो. उसका कैंपस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर फैलाने का काम ही नहीं है. इट इज अ वेरी प्रोफेशनल बॉडी जो सिर्फ फंड मैनेज पैसे करते क्या है? उसको ग्रो करते, कंपाउंड करते, रीइन्वेस्ट होता है. बट लाइक to what end? मतलब what do you want to do? Let's say वो 15-20 करोड़ हो गया, उसके बाद क्या करना है उसका? वो रीइन्वेस्ट होता रहेगा उसमें. उसका मेन पर्पस ये है सी इट वाज डोनेशन फ्रॉम बिट्स एलम कि बच्चों को फंड मैनेजिंग का रियल एक्सपीरियंस मिले मार्केट. वो वैसे सोचिए. हाँ, राइट. कि कॉलेज में बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिल जाए कैसे फंड मैनेज किया जाता है उसका हैंड्स ऑन. बस देने के लिए. हाँ, ओके, वैसा डोनेशन. ब्रो, बट इमेजिन 10-15-20 साल बाद if it becomes a significant amount, तुम 18-20 साल के बच्चे को 10-20 करोड़ रुपए ऐसे ट्रेडिंग करने का. मतलब इट्स क्रेजी. I mean, actually, I am impressed. अपना पोर्टफोलियो लाइक इवन इफ इट्स अ स्मॉल अमाउंट, मतलब सबका मेंटल बैरियर नहीं होता है. और उसको तुम प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हो कि तुम्हें कितना उस पे बहुत रेशियोज होते हैं, बहुत मैट्रिक्स होते हैं. बहुत टेक्निकल हो जाएगा अभी ये पॉडकास्ट. बोल थोड़ा सा तो बोल एटलीस्ट. मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो के वेटेजेस क्या है, तुम्हारा शार्प रेशियो क्या है, टेनर रेशियो क्या है, तुम जो पोजीशंस ले रहे हो, तो पोजीशंस तुमने स्क्वायर ऑफ की, उसके पीछे क्या हाइपोथेसिस क्या आती है. यू एक्चुअली लर्न हाउ टू पिच पोजीशंस. तो तुम्हारा कोई कमिटी है ऐसे? IF है ना. IF is a very like it's one of the most exclusive bodies on campus. Hardly 15-20 people है. अच्छा. And then you pitch to each other before you make an investment. हाँ, IF में 3 POR की पोजीशंस है. तो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, फंड मैनेजर है, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, और बाकी ऑल आर इन्वेस्टर मेंबर्स. तो द मेंबर्स पिच जो भी लीड कि क्या क्या इन्वेस्टिंग प्रपोजल्स है अभी मार्केट में करेंटली, कि अभी ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, अच्छी लग रही है, उस पे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, हम देखते हैं, देन वी इवैल्यूएट एंड सी कि आगे जाना है, वो पोजीशन लेनी है. कौन है लाइक अपार्ट फ्रॉम यू, हुआ द अदर 2 PRs? यश इज द फंड मैनेजर और चिन्मय 23 बैच का उसी ऑपरेशंस ऑफिसर. Bro, I did not know about this at all. भाई बराबर करो यार, मार्केटिंग ये क्या है? इतना बड़ा पैसा सब पिछले साल के PRs से नहीं किया. अच्छा, नहीं तो फिर IF में भी काफी क्रेजी सीनियर्स मिले मेरे को. लाइक पिछले साल के सीनियर में बहुत सीखा उनसे. So if you had to choose between traders and IF, only you could join one. Tough choice. Anyways, नहीं, दिल में तो भाई ट्रेडर्स बहुत प्यार है मेरे को ट्रेडर्स से. मतलब आई कैन नेवर गिव अप ट्रेडर्स फॉर एनीथिंग. मेरे को जो लोग मिले हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी. मतलब अभी तक हुई भी नहीं है, फॉरवर्ड होगी, बट आई कैन क्लियरली सी कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, बिकॉज आई हैव दैट विजन. मैं एक सॉर्ट ऑफ देख पा रहा हूँ आगे क्या होगा, कैसे होगा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम. वरना कुछ नहीं होगा, तब मैं रह जाता वही वीडियो गेम खेलता है. Okay, fine, continue. Like what was college life? चलो, तो ट्रेडर्स बन गया, इन्वेस्टमेंट फंड ज्वाइन किया, और क्या मतलब you don't go to classes? पूरा टाइम पूरा टाइम ट्रेडिंग करते हैं क्या? डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स या? मोस्टली हाँ, ट्रेड ही करता रहता हूँ मैं मार्केट्स में. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन चैट्स. इसके बाद क्या करते हैं? मार्केट्स क्लोज हो गए फिर एनालिसिस? बकचोदी करता हूँ. बहुत बकचोदी करता हूँ. पता है, देयर इज एक्चुअली अ थिंग, मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, मेरे को पता नहीं, सब कहते हैं कि मैं वो स्ट्रिक्ट हूँ. हाँ, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना मेरे. हाँ, मार्केट में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधी बात करता हूँ, बट एक्चुअली मैं बहुत बकचोदी करता हूँ यार. ऑफ मार्केट आर्ट्स में यही करता हूँ, और कुछ नहीं. मैं लोगों के साथ जाके रैंडमली बात करता रहता हूँ, कुछ भी. फिर स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो कोई प्रोफेशनली नहीं, कोई मिल जाता है उसके साथ खेलने लगता हूँ. सही है. एंग पे दिख जाऊंगा, खाना वाना खाता रहता हूँ, चिल मारता है. विंगी सर हैंग आउट होता है कि विंगी सर बाहर खेलने चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे. मतलब नॉर्मल लाइफ ही है, कुछ अलग नहीं है. अच्छा, अभी तुम लोग कंपटीशन वगैरह होस्ट करते हो? यू गो टू एनी आर देयर कंपटीशन फॉर ट्रेडिंग? होता है. क्या होता है? ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स अलग अलग लेवल के होते हैं. इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, बैंक्स कराते हैं, फर्म्स कराते हैं. तो हम भी कराते हैं लाइक ट्रेडर्स में भी, कॉलेज के लिए बच्चों के लिए ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन. वो वर्चुअल मनी पे होता है ऑफ कोर्स. कोई कंपनी से टाइप करके ऐसे? हाँ. तो डू यू थिंक इस सिमुलेटर्स हेल्प करते हैं? मतलब बहुत. इफ यू नो
how you are using them. This is also a very debated topic. अच्छा, but you give your perspective. Demo trading, कुछ लोग कहते हैं कि total waste है. हाँ. And they are not wrong, but you should understand why it's a waste and what it can help you in. I still do demo trading, and it's not bad. Demo trading is basically क्या है? तुम fake पैसे पे trade कर रहे हो ना? हाँ. Now trading is all about managing yourself. Yeah. Managing your own emotions, your own instincts. Correct. तो fake पैसे पे तुम्हें कभी वो feel नहीं आती. अब अगर रियल तुम्हारे 10,000 रुपए का लॉस हुआ, जितनी फटेगी बहुत, उतना डेमो पे 10,000 रुपए फट के कोई फर्क नहीं. हाँ, ये है. सो डेमो में तुम स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो, हाँ, बट रियल में होता नहीं. रियल में यू पैनिक एंड सेल. हाँ, बहुत इमोशंस ओवरटेक की और तुम नहीं कर पाते वो चीज, तो प्रॉफिट गैप बन जाता है. प्रॉफिट गैप होता है कॉन्सेप्ट. तो इसलिए लोग कहते हैं डेमो ट्रेडिंग इज अ वेस्ट. बट डेमो ट्रेडिंग इज अ ग्रेट टूल इफ यू वांट टू टेस्ट योर स्ट्रेटेजी. मेरे पे स्ट्रेटेजी बनी है, आई डोंट नो कि मैं इस पे अभी पैसा लगा दूं मार्केट में, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड वन और नॉट. तो उसको डेमो ट्रेड करो, देखो उसके स्टैटिस्टिक्स क्या मिल रहे हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दैट डेटा. अच्छा आइडिया है. मतलब you have to be cognizant कि you have to see the good and bad of everything and take the most out of it. जो मेरी proven strategies है मैं उस पे रियल ट्रेड करता हूँ, और जो मेरी नहीं बन रही है मैं उस पे डेमो ट्रेड करता हूँ. Very smart, very smart. Anything you're like, अच्छा, you can't talk about what you're experimenting with. Those are your proprietary strategies. There are a lot of, मैं बहुत strategies बता देता हूँ. मतलब there's not much. ठीक है, सारे नहीं बता सकता. हाँ भाई, रहने दे थोड़ा. तो मतलब अपने पास रखो जो पैसा बन रहा है, because वो अल्फा खत्म हो जाता है. हाँ, because if everyone starts doing it. हाँ, well there are some strategies जो scalable है, जो चल जाएगी. मतलब बता दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But there are some strategies जो अगर मैंने बता दिया और सपोज और कोई करने लगा उसी पे, तो मेरे को वो एज नहीं मिल पाएगी, मेरी एज खत्म हो जाएगी. मतलब see, this is all your research and hard work when you're coming up with these strategies. तो सर का एक्सपीरियंस लगाया हुआ है. It's not like you're coming up with it in 10 minutes. हाँ. Or whatever, like 2-3 hours भी लगे. It's about वो 7 years का. हाँ. एक स्ट्रेटेजी बनाने में सालों लग जाते हैं. अच्छा मेरे को बता, what is your future plan? मतलब अच्छा नहीं, अपन एंड में बोलेंगे तो क्या बात है, थोड़ा अच्छा एंडिंग होता है वो. मतलब talking about future plans and all. अच्छा, do you use any like specialized? Do you use Bloomberg terminal? Yeah. You go? हाँ, that's a crazy thing bro. मैंने कॉलेज में पता ही नहीं लोगों को कि वो एक्सेस है. हाँ भाई, मतलब bro, bigger companies don't have it, we have it. Exactly. वो भी मतलब पता है हमें पूरा नहीं है, मतलब आधे. हाँ क्या? हाँ. What do we not have? उसमें ब्लूमबर्ग टर्मिनल में और प्रीमियम वर्जन होते हैं जो नहीं है यहाँ पे, वो बैंक्स के पास होते हैं. बट ठीक है, जितना है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनीवन. अनलिमिटेड डेटा है वहाँ पे. एक्चुअली इट क्रिपल्स यू विद सो मच डेटा, यू डोंट नो व्हाट टू डू. बहुत सारा फायर होल्स. हाँ, मेरे को बस ये चाहिए था भाई, तुमने इतना सब दे दिया, मैं कंफ्यूज हो गया. बट you go do use बहुत मजा आता है. हाँ, वहीं बैठा रहता हूँ भाई. सही है. मतलब I don't think many colleges have that, and like having access. Yeah, economics department engineering colleges में कहाँ. हाँ, correct. And we have one of the best eco departments. Really? Finance department. अच्छा ना. हाँ. And do you work with any professors? तुमने finance वाला लिया है क्या? हाँ. लिया है. देखो मैं तो तुम पहले से करते आ रहा हूँ. इसमें क्या ये sharp ratio वगैरह? Minor के courses भाई मतलब they are very good for someone who doesn't know anything. और वो theoretical basics देते तुम्हें. It's like teaching someone ABCD. अगर मैं सच्ची बताऊँ तो वो bat, ball, cat, bat वो सब सिखाते हैं. उतना it's not sufficient for someone to start trading at all. No, not. ट्रेडिंग तो छोड़ो, इवन इफ यू वांट टू गो इनटू अ फाइनेंस जॉब यू विल, एंड इफ यू आर डूइंग सम एक्चुअल वर्क, नॉट जस्ट बैक ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स का एक्सेल शीट, तो दैट नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट. तुम्हें अपने से अलग से सीखनी पड़ती है चीजें. बट दैट्स अ वेरी गुड बेस टू स्टार्ट फ्रॉम. वो एबीसीडी नहीं आती होगी तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे. करेक्ट. तो मतलब वही करना है. अच्छा मैं क्यों जा रहा हूँ बार-बार आगे. मेरे को आई रियली वांट टू नो दैट, बट आई थिंक वो अच्छा एंडिंग है, तो आई जस्ट से इट फॉर दैट. बट या आई मीन anyone who's been very successful, I don't know, don't name numbers, but like any people from our campus, let's say some junior is watching, ठीक है, अब उनको पता करना है कि कौन सा बैच की बात करूँ मैं, तो who are some भैयास or दीदीस they can go and talk to. मतलब there are a lot of, मतलब ट्रेडर्स में तो तुम किसी से भी बात कर लो. हमारी कम्युनिटी बहुत ओपन है. एक्चुअली हम कोई बैरियर भी नहीं लगाते. पता है जिसको सीखना होता है वी टेक इन एवरीवन. तुम आओ ग्रुप पे कहीं भी कुछ भी लिख दो, एंड इफ समवन नोस अबाउट दैट वो तुम्हें डीएम कर देगा, साथ में बैठ जाएगा. करेक्ट. एंड यू गाइस डिस्कस strategies as well on the group? या फिर वो मिलके होती है? हाँ, मिलके होती है. ग्रुप पे भी टॉक डालते हैं, बात करते रहते हैं, लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं. भाई क्रेजी. और आंख में बैठ के बात होती है स्ट्रेटजीज के बारे में कि भाई चलते फिरते मेरे को लोग पूछते हैं, मैं बैठ जाता हूँ उनके साथ. कभी कभी लगता है कि भाई अगर 5 मिनट में क्विज है मेरा. ऐसा होता है ऐसा कि भाई आई एम गेटिंग लेट फॉर अ क्विज, और मेरे को बच्चे ऐसे रोक लेते हैं कि भैया मेरा ये वो बताओ. मेरे को लग रहा है ठीक है यार, मतलब मेरे को मन भी है बताने का, ठीक है पूछ रहा है बच्चा, बट 2 मिनट में क्विज है.
मतलब चलते चलते बात कर। अभी मतलब क्या आई वुड आस्क एग्जैक्ट सीजी, पर सीजी का कितना सीरियसली लेते हैं? पूछ ले भाई, 7.3 है 7.3 है अभी। हाँ, आई एम ट्राइंग टू गेट टू 7.5, हो जाएगी। हाँ सर। तो तेरे को जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है कि अपना ट्रेडिंग ही करते रहना है? दोनों करना है। ट्रेडिंग जॉब लेंगे ना। हाँ ट्रेडिंग मतलब फाइनेंस में जॉब, जैसे आई थिंक फाइनेंस जॉब इज अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट विद, बिकॉज मेरे को नहीं पता बैंक्स कैसे चलते हैं ऑनेस्टली। हाँ मतलब आई एम अ वेरी रॉ क्रूड जो पर्सन जो बस मार्केट में रह के थोड़ा बहुत देख देख के सीख गया, बट मेरे को जाके वहाँ पे देखना है कि एक्चुअली बैंक्स कैसे चलते हैं। And any I want to seniors? learn, हाँ। अच्छा, any seniors who have gone into bank, जो तेरे जो अभी कि विराग भैया बोला, विराग भैया does he work in- विराज भी अभी विराज भैया, फर्म sorry. में काम कर रहा है। विराज भैया और 20 बैच के तो अभी डुअलाइट, तो अभी उनकी पीएस Oh, उनकी PS चल रही है। Nice bro, मतलब and I'm guessing traders से जो लोग जाते हैं they do well in their मोर, हाँ। more or less. तो ट्रेडर्स में जो मतलब आई थिंक जो भी प्योर्स होंगे या जो भी लोग अच्छे ट्रेडर्स जो निकलते हैं, जिन्हें माइंड कर लेते हैं मोस्टली जल्दी, कॉलेज के अंदर अंदर ही बना लेते हैं। अच्छा कॉलेज के अंदर has anyone ever paid off their fees trading से? ऑल ऑफ अस टू क्या really? You guys make enough money to pay off your college fees? इजीली। Bro इतना ये क्या है लगी कॉलेज फीस कितनी है भाई? 3.5-4 लाख रुपए साल की निकल जाता है। ऑनेस्टली मतलब देयर अब ट्रेडर्स में जो मैं अच्छे ट्रेडर्स कह रहा हूँ ना तेरे को, वही 5-7 दे में 8 फिगर्स 7-8 फिगर्स yearly? आराम से। हाँ Bro, and that compounds. By the time they're done with and college. they started with like 8,000-5,000. सही में? हाँ, and by the time they graduated, like all my seniors या जिनको भी मैं जानता हूँ उनसे सीखता हूँ खुद या जो भी है, they all 7-8 figures traders. No, they can't start with 1,000, 5,000. That doesn't map out. अरे क्योंकि you're 6%. It takes one good year, right? अच्छा one good. Okay, fine. To scale up, और फिर उसके बाद तुम्हें और इन्वेस्टमेंट आए थे, you do gigs. जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, मैं ट्यूशन पढ़ाए थे, फिर आ गए पैसे। अच्छा वैसे करके। हाँ। अच्छा आइडिया ब्रो, मतलब you need to increase your corpus size, right? Or whatever capital size. हाँ, वो बहुत बाद में रियलाइज होता है एक्चुअली कि मेकिंग 100% Yeah. on let's say 1 lakh rupees is 1 lakh, but making 1% on 1 CR is the same 1 lakh. Yeah. And 1% बनाने में और 100% बनाने में जो रिस्क रिवॉर्ड के डायनामिक्स है ना, बहुत crazy होगा। हाँ, 1% 2% बनाना कुछ नहीं है, साल के 15-20-25% ऐसे ही बनते, फ्री का पैसा होता है। बट जहाँ तुम 50-60% बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है, देन यू हैव टू सी गो वर्थ इट अगेन। तो अगर कॉर्पस तुम्हारा बड़ा है तो इट एक्चुअली इफेक्ट मतलब बहुत फायदा करता है, बट दैट इज ओनली फॉर पीपल हु हैव फिगर्ड आउट कि क्या करना है। हाँ, अगर तुम्हें यही नहीं पता क्या करना तो भाई 10,000 में ही करो, पहले सीखो पहले सीखना इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और अभी तुम्हारे जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, डू दे स्टे कनेक्टेड विद द क्लब? वो लोग भी डिस्कस करते हैं ग्रुप्स में? हाँ, सबका अभी भी मतलब once you become an alum, you still stay connected? हाँ, उनकी एडवाइस मिलती है? हाँ। तो जब मेरे को थोड़ा बता ना कि लाइक हमारे ग्रुप में लाइक भैया लोग बहुत एक्टिव है, तुम कभी भी कुछ भी पूछो, दे आर ऑलवेज देयर। और इसे मतलब क्या कि हमारा एलुमनाई ग्रुप अलग है। अच्छा एलुमनाई ग्रुप अलग भी है। क्रेजी। एंड लाइक हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग? मतलब अभी मतलब विल कम टू अ क्लोज, आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग फॉर अ व्हाइल। वी हैव अरे हो गया क्या 1 घंटा? हाँ, मेरे को पता नहीं चला। 1 घंटा हो गया। जस्ट मेरे को लगा अभी तो शुरू हुआ। नहीं, I mean we could talk about more things. I have more questions. तो बहुत मजा आता है मेरे को बातें करने में। चलो we'll do some more questions then. All right. लोगों के लिए बहुत वो हो जाएगा कि लंबा खींच। अरे bro, today Ishan came from PU, right? Around 2 hours 20 minutes कर रहा। अरे मेरे पास पता है जब भी लोग आते हैं ना बच्चे, मैं तेरे को बताऊंगा फन फैक्ट, तू डर जाएगा एकदम। मेरे पास जो भी आज तक मेरे रूम पे आके बैठा है ना, बच्चा हो या फिर सीनियर हो या मैं भी जिसके पास गया हूँ, सपोज अगर 10-11 बजे रूम पे आ रहे हैं कॉलेज के सब एक्टिविटीज खत्म होने के बाद, कोई सुबह 7 बजे के पहले नहीं गया। सही में? हम ब्रेकफास्ट करने निकलते भाई क्रेजी। क्या बात करते हैं यार? पता नहीं चलता, वो ऐसी कर्टेन्स लगे होते हैं। कहते हैं अच्छा सनलाइट आ गई। नहीं पर व्हाट डू यू टॉक अबाउट? मार्केट मतलब क्या? इनफाइनाइट चीजें भाई, मतलब ना लाइफ एमुलेट्स मार्केट्स। हाँ। एंड यू योरसेल्फ, योर साइकोलॉजी, तुम्हारी खुद का नेचर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ पे, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स। हाँ। तो वो सब कुछ साथ साथ में चलता है, तो लोग एक्चुअली बहुत ही रिफ्लेक्टिव पॉडकास्ट बन जाती है, वो हम खुद में जब करते रहते हैं बातें। तो नहीं मतलब अच्छा रिसेंटली भी हुआ क्या? मिनट्स खत्म हुए तो बहुत लोग आ गए होंगे। हाँ, मतलब आते रहते हैं। तो क्या बात किया अभी? मतलब रिसेंटली व्हाट हैव यू डिस्कस? कुछ ऐसे आइडिया है, याद है? मतलब मोस्टली तो वही होता है, वो पूछते हैं कि अब कैसे लाइक प्रोसीड करूं, तो उनको बता रहे होते हैं और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, फिर मार्केट्स में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है, वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। अरे भाई तू टेंशन मत ले, अपने लिसनर्स बहुत स्मार्ट है। और इकोनॉमी के बारे में बात करते रहते हैं। हाँ।
कि अभी जैसे रेट कट्स हो रहे थे, अभी रिसेशन के बारे में क्या चल रही है. व्हाट इज द रेट कट? रेट कट वही फेड के रेट्स कट्स होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स. उसको रेट उसपे, कट बोलते हैं. अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ था September 17 को. उनने कम किया. यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कट होने स्टार्ट हुए. दैट्स अ तो it's gonna वेरी reflect- साइकिल. हाँ, वो एक बड़े साइकिल की लाइक स्टार्टिंग होती है. इट्स इंपैक्टफुल इवेंट. अभी नीचे आने वाला है. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरली. Not necessarily. All right. Anyways, अच्छा, but how do you see this? Like, अभी सब बच्चों, like the access to tools and the things have changed. How do you see it evolving? मतलब, let's say 10 years on the line when you come to our campus, like how do you see कि trading का scene अलग रहेगा? Or do you see anything different? कि देखो लगता है बच्चे वीडियो गेम खेलते रहेंगे. There is something I want, but there is something I know. Okay, दोनों बता. यार, आई विश कि लोग सीखे समझे एंड वीडियो गेम ना खेले. या तो ट्रेड करे, गैम्बल भी करो, चलेगा यार मेरे को, बट नो व्हाट इज गैम्बलिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग. गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग इज वेरी मच अलाइक, बट यू शुड नो व्हाट इट इज. डोंट प्ले वीडियो गेम. Don't play video. हाँ, बट आई नो कि वो कभी बंद नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द एसेंशियल लॉ ऑफ मार्केट्स. जो भी अगर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, अब वो कितने ही अच्छे कॉलेज के हों, कितने ही स्मार्ट हो, तो पता है न्यूटन पैसा आ रहा था मार्केट. अच्छा, न्यूटन वेंट बैंकरप्ट. हाँ, okay. तो इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IQ या स्मार्टनेस. ऑल लाइक मोस्ट इंटेलेक्चुअल फंड मैनेजर जो हार्वर्ड IIT सब जगह जाते थे, ऑल लूज मनी. तो इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IQ, it's very much related to EQ. अच्छा. And that varies a lot among different people. So मेरे को पता है कि भाई मैं 10 साल बाद आऊंगा तो मेरे को ऐसा ही सिनेरियो मिलेगा. रेशियो यही रहेगा. Ratio ऐसे रहेगा. I mean, it probably reflects the markets. Markets में भी similar ratio होता होगा. हाँ. And maybe a little bit skewed because you have people who are more technical. Is that true? या फिर नहीं, सेम रहता है. more or less रेशियो वही रहेगा. It's the fundamental law of the markets. Yeah. That won't change. वो मेरे को पता है innately. But वही मैं विश करूंगा, होप करूंगा कि ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो हमारे कैंपस में एटलीस्ट. How would you go about changing? मतलब if you could implement 2-3 things. हम लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट ग्रीड एंड फियर इज समथिंग व्हिच टेक्स अ मेजर टोल ऑन यू, और तुम फिर किसी की नहीं सुनते. हाँ, अब पैसा वो नीचे जाते हुए देखते हैं तो फिर वो पैसा होता है भाई. ग्रीड एंड फियर वही अपुनिज भगवान है, वो आएगा ही, सबका होता है एंड इट्स वेरी नेचुरल. वो पता है मेरे को, तो वो चेंज नहीं होने वाला. कांट बी चेंज्ड. किसी के बोलने से चेंज नहीं होता. किसी वो खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू दोस साइकिल्स. उसका कोई और वो नहीं है. Is there any way to accelerate that 7 years 4 years का साइकिल जो भी है? तो कितना था एक माह का साइकिल तूने बोला? इट डिपेंड्स यार. कुछ लोग 2-3 साल में ट्रेडर बन जाते हैं, कुछ 7-8 में बन जाते हैं, कोई 20-25 साल में भी नहीं बनते. How do you accelerate that? Like, do you just do more trades? How does the experience come about? जैसे कि देख, मैं बताता हूँ, JEE में तू प्रैक्टिस कर रहा है. If you solve more questions, you can solve 100 questions in one day. That will help you more than solving 100 questions in 1 year. Right? You can accelerate because it is not a function of time. It is a function of the number of problems solved. Right? वैसे ही ट्रेडिंग में कुछ है क्या? इंट्रोस्पेक्शन. सो ये जो तुम बोला कि वो बुक बनाओ, हाँ, जर्नल बनाओ, सी व्हाट यू आर डूइंग. दैट इज वन थिंग, बिकॉज जब तुम इंट्रोस्पेक्ट करते हो ना, तुम एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस को कंपाउंड कर रहे हो. अगर तुमने एक दिन एक एक्सपायरी, जैसे एक्सपायरी समझ जाएंगे ऑप्शन जो ट्रेड्स कर रहे हैं, एक्सपायरी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की. तो अगर तुमने एक एक्सपायरी ट्रेड की और तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिला, अब जब तुम उसको जर्नल करते हो और उस जर्नल को रिव्यू करते हो, तुम एक्चुअली वही एक्सपीरियंस दोबारा ले रहे हो. और जब तुम वही चीजें 4-5 बार लेने लगते हो, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बनते हैं. ट्रेडिंग इज नथिंग अदर देन पैटर्न रिकॉग्निशन. मैं चेस भी खेलता था, सेमी प्रो लेवल. रियली? क्या था रेटिंग? अगर क्या था 2050 ऐसे. chess.com. हां, अच्छा, 2050 is good. I correlate with that a lot. Bro, I think a lot of common patterns. Chess is like life. Chess is also like life. Traders. It's again pattern recognition. Yeah, pattern recognition. Trading में it's nothing but pattern recognition. तुम कुछ patterns या तो प्राइस में ढूंढते हो, या प्राइस के बिहेवियर में ढूंढते हो, या there are multiple layers to it. एक deep बहुत सारे मेट्रिक्स. तुम हो सकता है हाउ प्राइस चेंजेस उसमें पैटर्न्स ढूंढ रहे हो, हाउ प्राइस चेंजेस का सेकंड डेरिवेटिव में पैटर्न्स ढूंढ रहे हो. हाँ, ऐसे बहुत लेयर्स होते हैं. करेक्ट. तो इट्स बट वही पैटर्न ढूंढते हो, फिर उस पैटर्न में तुम कॉमनैलिटीज की कब पैटर्न शो अप करता है और उस पे अल्फा एज जनरेट करने की कोशिश करते हो. चेस में भी वही है, तुम एक पैटर्न देख रहे हो, फिर तुम्हारा जो भी एज तुमको पॉइंट, अगर ऐसा कारोबान स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर है. तो डू यू फॉलो अभी गुकेश हैज बीन प्लेइंग वेल? डू यू फॉलो अभी चेस एंड ऑल? उतना नहीं यार. Did you watch Levy? मतलब इसका नाम Gotham Chess. मैं देखता हूँ उसके, मतलब I know him, I used to see him, but मतलब अभी नहीं देख पाता, उतना टाइम नहीं है. But I know कि हमारा अभी ओलंपियाड जीते ना. हाँ, we did really well. मतलब I think we got like
2 goals, right? Yeah, I mean, though the Indian team has been playing well. I'm happy, bro. Like, you saw कितने लोग हैं अपने इंडिया के top 10 players में, like insane. I mean, बट अभी चेस हो गया मेरा थोड़ा done now. मेरा चेस का ऐसे वाला फेज है कि डाउन गया है कि ठीक है इसमें कुछ रखा नहीं है बहुत ज्यादा Bore हो गया. अभी you're playing like chess with money, ना? मतलब वो है अभी भी phase. Just the game has changed, right? बोल सकते हैं They're still playing the same thing. Anyways, कब खेलता था chess तू? कोविड में? Online. 19 20 21 चेस अच्छा वो वीडियो गेम के फेज में रियल वीडियो गेम भी चल रहे थे. नहीं, did you play on chess.com, ली चेस के आगे इस पे खेलता? चेस.com पे दोनों पे खेलता था. ऑफलाइन भी खेलता था थोड़ा बहुत. हाँ क्या? Do you go to tournaments? तो कहाँ से? कोलकाता से. ओह ओके भाई. तो क्या टाटा स्टील होता था. हाँ अच्छा. भाई तो हमें ऑफलाइन टूर्नामेंट अरे हाँ भाई कभी देखा है? हाँ टाटा स्टील गया था मैं देखने. तू देखने भी गया था? ब्लेड्स एंड रैपिड. वहाँ पे सुबह सुबह वो चैलेंजर्स का टूर्नामेंट होता है वहाँ खेला था. अच्छा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तेरा कोई फीडर रेटिंग है क्या? फीडर नहीं खेला मैं. फीडर वाले पैसे लेते हैं यार खेलने के लिए. अभी तो पैसे भी है, लगा दे भाई. नहीं वर्थ इट नहीं. रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा. अरे भाई सही है. अजी बट did you have like a favorite opening या फिर बहुत खेलता था फिर बहुत पढ़ा था? क्वींस गैम्बिट बहुत खेलता हूँ. क्वींस गैम्बिट बहुत खेलता है. तो लोग डिक्लाइन करते हैं या फिर ले लेते हैं खेल लेते हैं? I mean it depends मतलब किस रेटिंग के साथ खेल रहे हो. I think ऊपर फिर क्या? ऊपर तो मोस्टली डिक्लाइन ही चलता है. Bro, theoretical lines. तू कितना मतलब did you like were you like someone who studied chess properly as well? मतलब I used to read books. Used to study openings. मेरे को उस टाइम सारी याद थी. अभी उतना याद नहीं, भूल गया मैं. Could you like वो मतलब I can't do it, but it's very impressive when people can do it. I think it becomes trivial after a point. But like when you just play it in your head and like blindfold I can play. Really? I think even now I can do blindfold. Hi, crazy. I used to play blindfold simultaneously. Like on 2 different boards. Really? भाई कैसे? अरे वो वही patterns वो आ जाते हैं दिमाग में. But like I can't even remember. अच्छा देख, one thing I've seen is like these grandmasters can remember positions because they don't see individual parts. They see patterns. Like I saw a video about it. Basically what they did is I think Magnus Carlsen वगैरह का था. So they put like a chess board that has already been. उसको बहुत सारे patterns करते हैं. I just like okay 1998 में this guy versus this guy का ये position था. So whatever, they just put like some chess position and they put like 10 of those and he could remember every one of those. And then they just made it a random position. मतलब हाँ ये study देखी है मैंने. तुम देखा है क्या? हाँ. And then he could remember as much as almost as much as a normal person. So I understood कि वो pattern important है. So that's how you remember. No, but 2 simultaneous is insane. Damn. So तू chess club में था यहाँ पे? मैं फर्स्ट ईयर में गया था इंडक्शंस के लिए. I got almost selected, but फिर वही मन खत्म हो गया था उस पॉइंट तक. हाँ. Are people good? Like, do you know anyone who plays really well good chess? हाँ, यहाँ की चेस टीम बहुत अच्छी है यार. Like मेरी 2050 ऐसे रेटिंग थी ना कुछ. And I was one of the worst people जो चेस टीम में था. Crazy. So you are saying, अच्छा आपको पता does rating correlate to if you can do all this blindfold chess and all that as well? If do you think anyone who's at, let's say 2500 can they also play blindfold? If you think वो I think so. हाँ. I think above 1800 most people can do it easily. 1800 2000 के ऊपर. We have people 2500 ऐसे रेटिंग के भी हमारे चेस टीम में. यार ढूंढना पड़ता है. मेरे को बात करना है. This is crazy. 20 बैच के चेस कैप्टन थे आर्को भैया. Around 2500 I think. I've seen our college campus का team chess team doing well. Like I saw them they won a tournament last year वगैरह. Group tournaments होते हैं जीतते हैं. हाँ अच्छा खेलते हैं. चेस टीम अच्छी है. I think like, even amongst like IITs and everything, I mean, not that we're inferior in any way, but like they do well. Like I have seen them doing really well on all of these. Anyways, so yeah, chess खेलता था और कुछ ऐसे. Bro, I see a lot of common patterns in your life. Chess, trading, ऐसे video games. Did you play any games seriously? Say video games, like strategy games. Video games, not much यार. I didn't play many video games. चेस ही खेलता था मैं. चेस ही खेलता था. मैं बास्केटबॉल खेलता था. Like offline sports खेलता था मैं. ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं. ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं. I thought I would see that, but I think वो हो गया मतलब वो सुडोकू करता था. सुडोकू करता था. हाँ. हमारे स्कूल में सुडोकू कंपटीशन करता था मैं. हाँ. लाइक वो आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर. सो मैं और मेरा एक दोस्त था. हमने ऐसे रखा था कि हर बच्चे से 2-2 रुपए लेते थे. चॉकलेट जो जीतेगा उसको रिसेस में करते थे. हमने कंपटीशन किया था. क्रेजी. अच्छा है. It's good like good story. Anyway, so some few things that अपन वापस going back to that topic. If you could change a few things in college, जिससे कि you know students can be better traders. तो वो बस emotional एक disconnect आना चाहिए. That is important. Yeah, I think वो अपने आप आएगा emotional disconnect when you have experience कि daily पैसा आ रहा है जा रहा है. उससे होता है. Just be more mindful of what you want to achieve. Yeah. तुम ट्रेड कर रहे हो ठीक है.
तुम पैसा डाल रहे हो, तुम रोज कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों कर? इफ आई ये मेरे लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है. हाँ. इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इनफ व्हाई, द हाउ एंड व्हाट अपने आप दिखता है. एंड इफ यू हैव व्हाई, व्हाट एंड हाउ, फिर कोई भी चीज कर सकते हो. करेक्ट. तो आई थिंक मोस्ट पीपल लैक द व्हाई. दे डोंट नो व्हाई आर दे डूइंग. करेक्ट. ठीक है, तुम ट्रेड करो, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम सट्टा करके 100 200 500 रुपए बना लोगे, तुम गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके चले गए, बट उसके आगे क्या? या अगर वो नहीं बनेगा तो तुम रोते रहोगे बैठ के. और उसके लिए तुम कितना अपना ट्रेडिंग इज अ ब्रेन रॉट एक्चुअली, पता है, बिकॉज यू गो थ्रू ऑल इमोशंस. तुम नियर डेथ एक्सपीरियंस से लेके रोलर कोस्टर राइड है भाई, लिटरली. यू फील द किंग ऑफ द वर्ल्ड और सेम डे तुम्हें लगता है कि तुम मर गए. करेक्ट. तो इतना सब कुछ करके एट द एंड तुम क्या चाहते हो? If you can't materialize into a long term career and you can't think of it as a professional and with a stable mind, just don't do it. Just don't do it. It's not worth it. It's not worth it. So, Learn about finance, learn about how to manage your money well. And how can people learn that? मतलब Why just resources? think of it as a longer term perspective. और ये day trading ये सब मत करो. मत You करो. don't need to do it. Just invest. हाँ, like अब मतलब traders का प्रेशर खुद कह रहा है कि भाई मत करो trading, invest. Just don't even. सीखने के लिए करो अगर तुम्हें सीखना है. Just get to know about it. Yeah. But उससे ये expectation रखना बहुत गलत है कि मैं इसमें डेली बना लूंगा कुछ. अगर तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, Yeah. तो मार्केट भी तुमको Have सीरियसली realistic expectations. Yeah. You know 99% of the people will lose money. And even the 1% who are making money are not making more than 60-80% annual return. करेक्ट. तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जो आज सीखने आए हो, तुम आज ही भाई 10 गुना बैठ जाओगे, तुम ही हर्षद मेहता के अगले क्यों ही लग रहा है? I mean that's true. I think वो बहुत misconception है कि यार मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, हो जाएगा. मैंने आज ही मतलब कल ही रात को मेरे दिमाग में आया था, मैंने इंस्टा पे डाल दिया था कि there are only two kinds of traders in the market. One who have been humbled by the market and one who are soon going to be. क्या बात है भाई. Full. ये मेरे दिमाग में आया था. इसको लिख दो भाई डबल कोट्स में. ये क्यों अगर अभी तक नहीं हुए हो, you're soon going to be भाई. वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है. अच्छा मेरे को बता, क्रिप्टो को तू क्या बोलता है? क्या सीन है क्रिप्टो को? तुम वीडियो गेम बोलते हो या फिर व्हाट डू यू कॉल इट? लोग क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं. क्रिप्टो इज डिजिटल एसेट. अब क्रिप्टो में भी तुम क्या कर रहे हो? इंडिया में क्या सीन? क्या क्रिप्टो लीगली यार उस पे बहुत सारी वो है, क्या बोलते हैं, ग्रे एरिया है. रेगुलेटरी बॉडीज ने खुद अभी तक डिफाइन करके नहीं रखा कि उन्हें कितना अलाउ करना है, कितना नहीं करना है, और क्या स्टांस उनका है. दे हैव नॉट क्लियरली मेंशन्ड इट एनीवेयर. करेक्ट. तो तू करता है, कोई और करता है क्या? क्रिप्टो में है पोजीशंस मेरी करता. So I invest in cryptos mainly. I don't actively trade in them. Just invest किया है like. हाँ. तो तेरा सिल्वर इक्विवेलेंट है या कोई क्रिप्टो में? मोस्टली बिटकॉइन ही थी रमी. मैं वो ऑल्ट कॉइन्स पे नहीं जाता. ज़्यादा फोकस नहीं करता. कॉइन्स वो पंप डंप होते हैं, जो डॉज कॉइन वो सब नहीं करता. हाँ. मेनली मेरा बिटकॉइन पे रहता है. हाँ. और अभी अच्छा ठीक है. वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क इज कि लाइक डज फाइनेंस माइनर हेल्प एट ऑल? अगर तेरे को ट्रेडिंग करना है तो यू सेड कि इट्स नॉट सॉरी इट्स ऑलराइट. हाँ, you told me कि it's not like that helpful and it's like छोटी सी चीज. But does that help? और फिर अगर वो नहीं करना है, फाइनेंस सीखने नहीं मिलता है, तो इस जीरो था, I have heard of Zero Tha Varsity. Okay, I don't know many other things. We advise Varsity. It's a great platform. So what is great about it? What do they teach? What about finance management at our college? What are some other things at our college that people can leverage? जैसे कि Bloomberg terminal is a good thing. ऐसी कोई चीज़ है जो अपने कॉलेज पे like specifically being at BITS you can leverage, and versus also the online resources that people can leverage. ठीक है. फाइनेंस माइनर पहले बताऊंगा कि बुरी चीज़ नहीं है. अच्छी चीज़ है if you don't know, if you want to learn. And जब मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंस माइनर में तुम्हें रियल मार्केट चीज़ें नहीं पता चलती, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जिस बंदे ने 7 साल मार्केट में काम किया. नहीं है भाई, यहाँ पे कोई नहीं है. तो मोस्ट लोग वहाँ से सीखेंगे फाइनेंस माइनर के कोर्सेज से, या फाइनेंस में बाकी जो कोर्सेज है, तुम वहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे, लेके जाओगे, तो करो. मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है, वो बहुत अच्छा है. और फाइनेंस में वहाँ पे आगे रिसर्च में भी बहुत स्कोप होता है. यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. अभी जो मैंने लाइक PS में बताया कंपनी के लिए मॉडल बनाया था, वो मॉडल मैंने मोर और लेस सैपम में ही सीखा था. उसके पहले मेरे को बहुत ही क्रूड क्या बोलते हैं इंट्यूशन थी क्या होता है, बट बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते हैं नहीं पता. ये नहीं आता. हाँ, अभी आता है. हाँ, ये मैंने मतलब माइनर के कोर्सेज में ही सीखा है. फ्रैम में, सैपम में, इन सब में सीखा. तेरा कौन सा होगा? मेरे सैपम, DRM और फोफॉब. सैपम, DRM, फोफॉब. इस बार फ्रैम और सब तीनों लिए नहीं है, मतलब पढ़ रखे हैं मैंने. पढ़ रखे. अच्छा. इंटरेस्ट है तो थोड़ा पढ़ लिया.
अब सेकंड वार्सिटी के अलावा स्टोरी यार बताओ। छोटी सी है, चल बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। अरे आराम से बता, बहुत कोई लंबी कहानी स्टोरी है। दिस इज सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टोरीज। बता, आराम से बता, 10-15 मिनट लेंगे, बोल। आई विल नॉट नेम द पर्सन, या तो इवन दो आई विल बी प्राउड टू, बट चल ठीक है मैं नहीं बताता नाम। हाँ ट्रेडर्स के एक सीनियर थे हमारे जिनके बारे में बहुत कहानियां हमें बताई गई हैं एंड वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय। अच्छा, अच्छी कहानी है। लाइक देयर वाज अ पर्सन, नाउ ठीक है मैं नाम नहीं बता रहा, बैच कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बट एक बंदा था, ही हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक उसके पास नहीं थी पैसे स्टार्टिंग में, उसके फैमिली के वेरी हम्बल फैमिली, and he started trading on campus, and Zerodha Varsity was the only resource which he learned from. It was the only thing. Zerodha Varsity ऐसी चीज है, वो जैसे भगवत गीता में नहीं होता, तुम एक बार पढ़ते हो तुम्हें कुछ समझ आता है, तुम दूसरी बार पढ़ते हो कुछ और समझ आता है, because now you have a deeper understanding, you are seeing it from a different perspective. Varsity is very beautifully designed like that. अगर कोई बिगिनर पढ़ रहा है उसको लेवल 1 की एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो सीखेगा कि अच्छा जैसे कॉल ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन के ग्रीक्स क्या होते हैं, ठीक है, वीगा ये होता है, बट फिर जब उसको 4-5 बार पढ़ेगा तो और उसको डीपर समझ में आएगा, अच्छा तो विक्स में एटीएम का अलग आईवी होता है, फिर आईवी के स्पाइक्स अलग आते हैं, गामा और आईवी कैसे रिलेटेड है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तुम खुद से रिलेट करने लगोगे, डॉट्स कनेक्ट करने लगोगे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वार्सिटी से ही सीखा था। एंड अब मैं जब बता रहा हूँ हम्बल, उनके पास 500 रुपये नहीं होते थे ट्रेड करने के लिए, ही यूज्ड टू वेट फॉर एक्सपायरी जहाँ पे 98 1 रुपये 2 रुपये की ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि वो वही ट्रेड कर सकते हैं, 100-200 रुपये भी नहीं है ट्रेड करने के लिए। और वहां से while on campus he scaled to 8+ figures. सही में? Crazy. He went on television, उनके YouTube पे इंटरव्यूज है, CNBC पे, हाँ, and it's like this only कि a college student makes 1 crore ऐसे वैसे, and no one used to believe it at that point of time, but ठीक है, everyone had their own, and he actually did. बट वही है, अब उनको फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, बट ठीक है। तो द पॉइंट इज कि Zerodha Varsity इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड यू कैन डू स्टफ, यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अदर देन योर ओन एफर्ट्स। अब जब मैं कह रहा हूँ ना, अब लोग बोलेंगे तुक्का था लगता, ब्रो दैट पर्सन यूज्ड टू डेडिकेट 18 hours of his day daily to trading. Wow, that's amazing. 18 hours daily and 18 hours on an average कह रहा हूँ। अच्छा, there were some days ज्यादा था ना, पे some days कम था, कुछ नहीं करता था, used to live and breathe that thing, और 2-3 साल 4 साल में कर गया। तो वही अराउंड तुम्हें लगता है 8-10 हज़ार घंटे लगते हैं किसी भी चीज़ को मास्टर, उसने दिए हो गया। तो वार्सिटी इज मोर देन गुड इनफ प्लेटफॉर्म, और तुम्हें बहुत आज के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है ऑनेस्टली। अगर मेरे से कोई भी बच्चा आके ये पूछते हैं कि भैया कहाँ से सीखूं, बोलता हूँ ये ट्रेडर नहीं बनेगा। जिसको the person who cannot figure out कि कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्टली, वो तो रिसर्च कर। अगर तू गूगल पे ये सर्च नहीं कर पा रहा तो तू ट्रेडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एज अ ट्रेडर तेरे को रिसर्चर बनना है। हाँ, बेसिकली सर्चिंग फॉर न्यू अल्फा जो कभी आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। करेक्ट। तो जो चीजें ऑलरेडी सामने पड़ी है, अगर तू वही नहीं देख पा रहा तो तू अल्फा कहाँ ढूंढेगा? तू नहीं बन सकता। बट मैं मुंह पे नहीं बोलता, किसी को डिस्करेज नहीं करता, सही है, पर अंदर तो सोच रहा है। हाँ वही है, जो भी अच्छे ट्रेडर्स है वो मेरे को कभी आके ये नहीं पूछेंगे भैया कि रिसोर्स कहाँ से सीखूं। Zerodha में क्या क्या कवर करते हैं? वार्सिटी में सब कुछ है भाई, सब कुछ है, उसके इतने सारे मॉड्यूल्स है, इतना सारा डेटा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ते रहो, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, मतलब 6 महीने तक पढ़ते ही रह जाओगे, और फिर उसके बाद 3 बार और पढ़ते रहो क्योंकि कंटेंट नहीं बदला, तुम बदल बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। सही है, वार्सिटी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। उसका क्या था कि कॉलेज लाइफ में से क्या क्या कर सकते हैं फाइनेंस में सीखने के लिए। और एक तो क्लब्स में तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, तुम सीनियर से बात करो। हमारे इको डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तू फैकल्टी से बात करता है कभी? फैकल्टी ने बहुत गाइड किया, बताया, मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। उन्होंने बताया कि ठीक है ऐसे ऐसे फील्ड्स होती हैं जहाँ तुम जा सकते हो, देख सकते हो। तूने लाइक व्हिच फैकल्टी डिड यू रीच आउट? थोटा सर से बात की, ऋषि सर से बात की, मैंने यगंती सर से, सनी सर से, श्रेयांश से, they're all nice. They're all nice. And they're all guiding you. Very supportive. हाँ यार, आई थिंक मेरे को लगता है यार कि वो लोग है ना दिल से चाहते कि तुम्हारा अच्छा हो, ऐसे जॉब मिल जाए, अच्छा हो जाए। वेरी सपोर्टिव ब्रो। ऋषि सर को जैसे उनके साथ तो बहुत अच्छी बंदी, मैं कुछ भी जाके बोलता हूँ तेरे पास नंबर है ना, फोन कर लिया। मैं सोचता हूँ कि सर को डिस्टर्ब करूँ, मतलब तेरे पास है ना नंबर मेरा, भाई वो बहुत चिल है, फोन करना। सब मत करने लगना यार, इसको पता था फोन करने को, सब कर रहे हैं अभी, वो मेरे को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा फैकल्टी, फिर हाँ भाई लैब एक्सप्लोर करो यार, बातें करो लोगों से, बहुत कुछ है। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज उसमें तुम लोग, मतलब तुम लोग का
जो सेशंस होते हैं वो फन इवेंट्स तो होते हैं फेस्ट में, दे गेम्स वगैरह, बट मतलब वो ठीक है, दैट इज फॉर द जनरल क्राउड टू एंजॉय. ट्रेडर्स के हाँ. एक्चुअल दैट इज ठीक है, मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग कंपटीशन हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, सबके लिए. हाँ. और अच्छा मैं जैसे कोई पूछ रहा था पहले पॉडकास्ट करने के पहले क्या, पर व्हाट आर द कॉमन पिटफॉल्स, मतलब लोग कहाँ गलती करते हैं ऐसे. आई मीन यू टोल्ड मी कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते ये सब, उसके अलावा कुछ है जो यू नो पीपल आर नॉट रियली, यू सी की पीपल लूजिंग लॉट ऑफ मनी इन दैट, कि वो मत करो यार तो बेटर रहेगा. यार अब इंट्रिकसीज में जाऊँ तो वही बहुत कुछ है, रिवेंज ट्रेडिंग और ये सब. हाँ बता ना, मतलब टॉक अबाउट दोस. कि like when you're trading you lost some amount, now you want to regain it, so you double your position sizing. चल ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ अच्छे से. जैसे एक लॉट ट्रेड किया और 500 रुपए का लॉस हो गया, तो मेरे पास टोटल 10,000 रुपए थे, 500 रुपए का लॉस हो गया एक लॉट ट्रेड करने पे. अब पहला इमोशन ये आता है कि मेरे को मार्केट से रिवेंज लेना है. हाँ. ये पैसा लूज कैसे हो गया, मैं हार नहीं सकता, मेरे को जीतना है, मेरे को नेट नेट ग्रीन में निकलना है, मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं किया जाता. तो अब जो एक लॉट पे ट्रेड करना चाहिए, तो उसको पोजीशन साइजिंग, उसका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक लॉट होना चाहिए. वो 100 लॉट्स या 10 लॉट्स का ट्रेड डालेगा, ये सोच के कि एक लॉट पे 10 पॉइंट गए तो या 20 पॉइंट गए तो 500 रुपए का लॉस हुआ, तो अब मैं 10 लॉट पे 2 पॉइंट भी बना लिया तो रिकवर हो जाएगा. बट वो 2 पॉइंट नीचे आया तो 500 रुपए और गए ना. अब वो सीधा 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आते हैं, 5,000 10,000 कैपिटल आउट, यू आर आउट ऑफ द मार्केट. और वो इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट टू लूज मनी देन. एग्जैक्टली, बिकॉज देख यार, अब तेरे पे 10,000 रुपए है, तेरे को अगर बनाना है ना तो कितना भी बना सकता है. तो 10,000 का 11,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 15, 20, 25, 50 लाख कर लेगा. बट तू नीचे जीरो पे आएगा तो खत्म हो जाएगा. तो यू आर आउट ऑफ द गेम. यू आर आउट ऑफ द गेम फॉरएवर. और गेटिंग फ्रॉम 5,000 to 10,000 is again very difficult. Yeah. You have to double your money than going from 10,000 to 15,000. And see, once you go from 10,000 to zero, na, it's not just losing 10,000. It's losing your own self as a trader. मैं बताऊं, अगर जब मेरा पहला लॉस हुआ था, जब मेरा पहला 5-10 हज़ार रुपये उड़े थे, मेरे को ये नहीं हुआ था, मैं उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ दिया था 6-8 महीने के लिए. बहुत खराब लगा, क्योंकि I lost confidence. And you can never come back again. It's very difficult. I had a mentor जिसने मेरे को गाइड किया और जिसके साथ थोड़ा हो पाया. वरना नहीं आते यार लोग, तुम कभी बेट ले ही नहीं पाओगे. करेक्ट. It's all about मैं बताता हूँ तेरे को ट्रेडिंग क्या होती है एक नटशेल में. 6 घंटे के लिए बैठते हो ना अगर मार्केट में, तो 5 घंटे 50-55 मिनट तुम कुछ नहीं करते. यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप टू अराइव. और जब तुम्हारा सेटअप सिस्टम अराइव करता है, तब ऐसे स्नाइपर की तरह एक बार में टक करके बस हाँ बॉम्ब मारना होता है. वो टाइमिंग, वो पेशेंस इंपॉर्टेंट. हाँ पेशेंस. और जब एक बार स्ट्राइक करो तो बोल्डली स्ट्राइक करो, वो भी इंपॉर्टेंट है. कि तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आई बट तुमने उस पे बोल्डली एक्शन लिया ही नहीं, तो यू कुडंट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. करेक्ट. तो जब जीरो हो गया, व्हेन यू आर आउट ऑफ द गेम, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. नाउ कैन नेवर टेक बोल्ड एक्शंस. तो अच्छा समझ गया मैं. तो वो द स्कार ऑफ लूजिंग दैट 10,000 इज वेरी हेवी. इवन इफ यू अगेन गेट दैट 10,000 और तुम वापस ट्रेड करो, you will never be able to make that bold decisions. Right. And the best trades are always the hardest ones to make. There are best trades, without talking about money. कौन सी कंपनीज में है, मतलब पास्ट सिल्वर. अच्छा करेक्ट. सिल्वर अपन तो कंपनीज करते हैं. मेरा हेटरेट सिल्वर में पता नहीं क्यों बट बहुत हाई है. बहुत अच्छा है. सिल्वर इज योर गोल्ड. मेरा सिल्वर में अराउंड 94% का हेटरेट है. सही ना भाई, क्रेजी. मतलब I don't know how. मेरा How did you stumble across silver? मतलब तेरे को सिर्फ गोल्ड सिल्वर में करना था पहले? मेरे को बचपन से सिल्वर पता नहीं बहुत अट्रैक्टिव लगता है. मेरे को गोल्ड उतना पसंद नहीं है. इवन फिजिकल गोल्ड मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मेरे को देख के. तो when you win second prize you are happy. सिल्वर मिल गया. I actually always win second prize. This is another thing. मैंने लाइफ में जितने भी कंपटीशन में पार्ट लिया ना, I never come first. हाँ, I've always been second. I think this is the reason मेरे को सिल्वर पसंद है. एक भाईचारा बन गया ना कि हाँ यार अपन It's destiny. It's destiny. भाई क्रेजी एक्सपीरियंस रहा यार तेरे तो, मतलब ब्रो. लाइक रेस हो, एक्सटेम्पोर, हर सब में हमेशा सेकंड आया हूं. सब में सेकंड आया भाई. सेकंड बेस्ट कॉलेज इन इंडिया. लोग बुरा मान जाएंगे तुझे. आईआईटी के बाद तो मिट्स है ना. भाई अबे नहीं देख, मतलब मैंने जो सोचा था वो तो हो गया. तूने काफी कवर कर लिया. आई मीन देख, मेरे को जरा एनीथिंग एल्स दैट आई शुड आस्क यू. मतलब देख, मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है because I am not someone who trades. But like this is my general understanding. I was asking from perspective of someone who is outside the scene. Anything that you think people inside the scene should know, from outside looking in should know कि यार मतलब अब obviously everyone wants to make money, पर अभी मतलब as a non-trader looking in, these were my questions. Anything else that you
anything else you want to say to people who are, outside? कि as someone who trades a lot, people who do not trade, क्या रहेगा? मतलब, what would you say to them? Like, I know कि one thing you could say is कि start trading or start investing. But anything else? ऐसे कुछ सोच के? यार there are a lot of things. हाँ मतलब अगर एक दो चीज़ें मेरे को कहनी हो तो See, I don't think मेरे को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि learn about finances. वो बहुत सारे influencers ने और इंस्टा रील्स ने ऑलरेडी काम कर दिया. मेरे को वो प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब इसके लिए मेरे को बैकलैश भी मिलता है. मैं जिससे बात करता हूँ भैया डीमोटिवेट क्यों कर देते हो? मैं डीमोटिवेट नहीं करता भाई, मैं तेरे को रियलिटी बताता हूँ. सीधी बात बता. हाँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई नो कि क्या हो सकता है और मेरे को पता है तेरे साथ वही होगा. मैं वो नहीं चाहता तेरे साथ. हाँ, करेक्ट. So I'll always say कि भाई अगर तेरे को नहीं करना मत ट्रेड कर प्लीज. ट्रेडिंग इज नॉट ग्लैमरस. इट्स नॉट शेरी लेडी बैकग्राउंड में बज रहा है और तुम नाच रहे हो लैम्बोर्गिनी में. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट pitfalls which you can fall into and you can never come out of it again because once a trader always becomes a trader. वो कभी मार्केट छोड़ नहीं पाता. And if you don't know and if you can't figure out what to do, मार्केट साइकिल्स हमेशा चेंज होती है एंड यू ऑलवेज कम बैक टू द स्केच बोर्ड. ये चीजें नहीं समझ आती लोगों को. करेक्ट. हर 7-8 साल में डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं मार्केट की जब भी साइकिल चलती है एंड एवरी ट्रेडर कम्स बैक टू द स्केच बोर्ड एंड उसको फिर से नई रिसर्च करनी पड़ती है. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो नहीं, सो इट्स द डार्केस्ट थिंग विच यू कैन फॉल इनटू. तुम्हें नहीं पता तुम क्या करोगे. यही नहीं पता चलता कि अच्छा अब चेंज हो गया और नाउ यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंटली. तो इट्स अ लॉट ऑफ रेट्रोस्पेक्शन. इट्स अ गेम अगेंस्ट योरसेल्फ. तुम हमेशा खुद से लड़ रहे होगे, खुद को समझ रहे होगे, खुद के बारे में नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होगे. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स नॉट ईजी. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड बिकॉज वही रिस्क रिवॉर्ड देख लो यार. यू आर इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, इफ यू वांट टू बी अ पर्सन जो मार्केट से पैसा कमा रहा है, यू आर लुकिंग एट अ प्रोफेशन विच विल पे फॉर योर जनरेशंस. तो अगर इतना बड़ा रिस्क है ना तो या इतना बड़ा रिवॉर्ड है तो उतना बड़ा रिस्क भी है. उतना ही ज्यादा नेगेटिव्स भी है जो छुपे हुए हैं, दिखता नहीं है. सिर्फ एक ट्रेडर ही इमेजिन कर सकता है कि दूसरे ट्रेडर पे क्या बीत दिखती है. कोई और समझ भी नहीं सकता. सो इट्स नॉट ग्लैमरस. इट्स नॉट हर्षद मेहता वाला वो रिया मेरी गर्लफ्रेंड चल रहा है, वो नहीं है भाई. तो प्लीज वैसी एक्सपेक्टेशंस लेके मत करो. वैसा मत सोचो कि होता है. और भाई अगर तुम्हारे आसपास लोग कह भी रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, 9,990 लोग झूठी बोल. और ये मेरा नहीं है, राकेश वाला बोल के गया उसके इंटरव्यू में. अच्छा, एक बिफोर आई आस्क द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकली, व्हाट इज वन फुल साइकिल? यू एज अ पर्सन पर्सनली बता. गोइंग फ्रॉम थिंकिंग कि आज मतलब मेरे को कुछ स्ट्रेटजी बनानी है, वहां से एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जिटिंग द पोजीशन, व्हाट डज दैट लुक लाइक द होल साइकिल? मतलब वो मतलब अभी देखो क्लास में बैठे आइडिया आई, ऐसा कुछ होता है या फिर हाउ डज दैट होल साइकिल? ठीक है, देख सबसे पहले यू नीड टू मेक एन ऑब्जर्वेशन. यू ऑब्जर्व समथिंग. अब ऑब्जर्वेशन तुम 2-3 तरीके से बना सकते हो. ईदर यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न एट एनी डिफरेंट लेवल. अब लेवल से मेरा क्या मतलब है भाई कि प्राइस पे या फिर प्राइस कैसे बिहेव कर रही है उस पे, या एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे पे, या एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कुछ. आई विल गिव एन एग्जांपल जिससे थोड़ा रिलेट हो पाएगा, इजीली समझ में आएगा. तेरे को कैसे पता चलता है कि छाता लेके निकलना है यानी अकेडमी जाने के लिए? बारिश हो रही है. और डू डिसाइड बारिश हो रही है या होने वाली है? क्या देखता है? बादल ग्रे हो गए, हवा चल रही है, सनलाइट थोड़ी डिम है और ठंडा ठंडा हो रहा है, तो छाता लेके निकलता हूँ, बारिश हो सकती है. देयर इज अ पैटर्न व्हिच यू हैव रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच यू ऑब्जर्व. तो वो पैटर्न शो अप हो रहा है तो तू छाता लेके निकल. ट्रेडिंग इज लाइक दैट. तुम एक पैटर्न अगर तुम्हें वैसा मिल रहा है कि ऐसे इन्वायरमेंट बन रहा है और ऐसे इन्वायरमेंट में बारिश होती है, तो तुम उसको नोट करते हो. करेक्ट. कि देखो जब ऐसे इन्वायरमेंट है तो बारिश हुई. तो फिर तुम देखते हो कि ऐसे इन्वायरमेंट कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, और तुम उसको देख उसकी साइकिल स्ट्रेट करने की कोशिश करते हो. एंड यू मेक अ स्ट्रेटेजी अराउंड दैट कि ठीक है तो ऐसे ऐसे अब बारिश होती है, जब बारिश हो रही है तब मैं छाता लेके बना सकता हूँ. तब मेरे पे अगर चावल के खेत वहां पे हो जाए, बारिश हो रही है तो मैं पैसा बना लूँ, वैसा कुछ. तो तुम उस हिसाब से पोजिशंस बनाते हो. ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन का हो गया. देन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व समथिंग यूनिक जो नॉर्मली नहीं होती. ऐसे नॉर्मली तुम्हें दिखेगा कि ऑप्शन प्राइस डीके कर रहा है, बट तुम एक यूनिक फीचर देखते हो कि इस टाइम पे ऐसे कंडीशंस में गामा स्पाइक आता है, इंजेक्शन मारता है. तो वो क्राइटेरिया जब अगर तुम उसको प्रेडिक्ट कर पाओ, देन यू कैन कैच ऑल दो स्पाइक्स. तो ये दो कॉमन चीज है. तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तुमने बनाई. फिर तुमने देखा कि ऑब्जर्वेशन कब आती है, उसके लिए रूल्स डिफाइन किए. फिर उसमें तुम वही देखते फ्रंट टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग करते रहते हो.
पास्ट डेटा पे देखते हो कि वो चीज सच्ची में चल रही है कि नहीं, और फिर लाइव मार्केट में आगे चल रही है कि नहीं। फिर रूल स्पेसिफिक डिफाइन करते हो एंट्री एग्जिट के लिए, कि जब ऐसे ऐसे क्राइटेरिया बने तब मेरे को एंट्री लेनी है, कितना उसका रिस्क रहेगा, कितना रिवॉर्ड रहेगा, वो एनालाइज कर। हाउ डू यू क्वांटिफाई द रिस्क? यू नीड टू सी फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कितना रिस्क मेरे लिए सबसे ऑप्टिमल है, और उसके लिए कितना रिवॉर्ड सबसे ऑप्टिमल है। पर वो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? मतलब ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर से आता है मोस्टली ट्रायल एंड एरर। यू हैव टू सी कि कितना एवरेज बैठेगा और तो सही डायनामिक्स रहेंगे। ओके, देयर इज अ वेरी फेमस चार्ट, वही हिट रेट और रिस्क रिवॉर्ड का। अच्छा। अगर जैसे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है तेरा, मतलब you are risking 1 rupee for 1 rupee win, and if you are winning 50% of the times, you are at break even. Correct. हाँ. If you are winning 2 rupees every time you are losing 1 rupee, तो around 33% win rate पे you are at break even. Correct. अच्छा. अच्छा, तो you're saying कि if you backtrack exactly. if you what do you call it? Back testing. हाँ. 10,000 की तो you see your win. Exactly. और उसका फिर कि win rate क्या है, average risk reward क्या है, तो net मेरा कितना पैसा बन गया। तो अच्छा, तो now you have observed, you have created your strategy. हाँ, रूल्स डिफाइन हो गए। फिर तुम अब इसमें 2-3 तरीके हैं, तो तुम मैनुअली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो या ऑटोमेट कर सकते हो। तो मैनुअली वही, अब तुम कंप्यूटर के सामने बैठोगे और फिर मैनुअली जब ऐसा कुछ हुआ तो तुमने वो स्ट्रेटेजीज वो पोजीशंस बिल्ड कर दी और वो ऐसे एग्जिट कर दिया। फिर अभी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आती है कि तुमने वो कोड कर दिया और वो कंप्यूटर खुद से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो करके फिर तेरा पोजीशन हो जाता है। अच्छा, आई नो मैंने लास्ट टाइम में सवाल पूछना है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म्स का क्या सीन है? Is that something you are looking into? Is that something you can get into? तेरा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है नहीं है, तो उसका क्या होता है? मतलब मेरे को प्रोग्रामिंग पसंद है, बट मेरी ऑनेस्टली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे को मैथ्स समझ आती है, बट बड़े बड़े इक्वेशन देख के मैं इंटिमिडेट होता हूँ। हाँ, तो आई डोंट थिंक क्वांट मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बट हाँ, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है, तो वो लोग क्वांट कर लेते हैं। पर अभी देख, जैसे कि तेरा जो इंट्यूशन है, ऑल दी स्ट्रेटजीज दैट यू बिल्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन बिफोर दैट, देखो लाइक देखो, डू यू हैव लाइक सर्टेन थिंग जहाँ पे तेरे को आइडिया आते चीज़ों करने की? जैसे कि मेरे को बहुत बार मतलब सर्टेन सिचुएशन जहाँ मेरे को अच्छे आइडिया आते हैं, मेरे को पता है कि मेरे को कब आते हैं वैसे, कि मतलब कभी फोन के में अटक गए कहीं, या फिर बेड में पड़ा हूँ और फिर रात में बस सोच रहे हैं और मतलब एकदम से आ जाए कि हाँ ये कर सकते हैं, राइट? तो मतलब ऑब्वियसली वो तभी आता है जब मेरा दिमाग खाली हो। पर डू यू हैव लाइक दिस प्लेसेस जहाँ पे तो एकदम से कोई आइडिया, जैसे कि मेरे को ना मिड सेम्स और कॉम्प्लेक्स बहुत आइडिया आते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी होती है और टाइम पास करना होता है, तो कुछ भी आ जाए, ठीक है? तो मतलब ऐसा डू यू हैव फेसेस लाइक दैट और प्लेसेस लाइक दैट जहाँ पे यू थिंक ऑफ स्ट्रेटजीज या ऐसे? अरे मोस्टली यही सोचता रहता हूँ पूरे दिन। मतलब कहीं भी कुछ भी करो, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ यही चल रहा होता है। नहीं तो स्ट्रेटजी इज अ स्ट्रेटजी अ रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क? आई एम सेइंग कमिंग अप विद इट, लाइक जस्ट द इनिशियल थॉट कि तू बहुत देर बैठ के पढ़ रहा था and then you did the math and it came out, या फिर वो से बस कुछ क्लिक हुआ कि यार ये this might work? क्लिक भी तभी होता है ना जब तुमने बहुत देखा है। अच्छा, unless you have spent, मैं चार्ट टाइम कहता हूँ बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्ट टाइम कोई वर्ड नहीं है मेरा, मैंने खुद से ऐसे ही बोल दिया कि चार्ट टाइम इसके लिए तुमने चार्ट्स में कितना समय स्पेंड किया है। and what do you look at when you look at चार्ट्स में प्राइस, हाउ प्राइस मूव्स। अभी अगर जैसे तुम मेरे को चार्ट दिखाओगे, एनालिसिस जिसको बोलते हैं करना, एनालिसिस भी वेस्ट होती है। एनालिसिस, अब ये वही एक और लेवल डीप चला गया कि एनालिसिस का कोई पॉइंट नहीं होता, बट ठीक है अगर एनालिसिस करना है चार्ट का कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बताओ, तो मेरे को टाइम नहीं लगता भाई। आई प्रॉब्ली हाफ अ सेकंड और 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए चार्ट फ्लैश करा के छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ पैटर्न। करेक्ट, बिकॉज चार्ट टाइम उतना स्पेंड कर लिया ना, तो ब्रेन में पैटर्न्स वो है कि वो ऐसा बन रहा है। तो वही पैटर्न रिकग्निशन ही होती है। तुमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया, तुम रैंडमली चल रहे हो, तुम्हारे वो पैटर्न्स डॉट कनेक्ट हो गए और तुम्हें आके हाँ ये करके देखते हैं, ट्राई करके, क्या पता है शायद कुछ हो। And then you put another software in the back test किया, and then you can execute it. There are certain laws market में जो हमेशा चलते हैं। जैसे mean reversion is one thing. What is that? Everything has to revert back to its mean. अच्छा, वो law of large numbers। हाँ, कुछ भी extreme पे नहीं रहता, वो mean पे आएगा। तो mean reversion strategies बहुत सारी होती है, trend following strategies होती है, then counter party strategies होती है। counter party क्या होता है? काउंटर पार्टी मतलब डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द मासेस आर थिंकिंग। अच्छा, वो भी समथिंग, इसका क्या नेगेटिव फीडबैक ट्रेडर बोलते क्या होता है सर? ऐसे कुछ तो भी। इट इज अगेन समथिंग इन व्हिच आई स्पेशलाइज इन। मैं वही करता हूँ। आई ऑलवेज, मेरा एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि कोई हाइपोथेसिस नहीं है, इफ एवरीबॉडी इज डूइंग दिस मैं इसको ऑपोजिट करूंगा। हां, बिकॉज़ दैट्स वेयर यू मेक द मनी, राइट? देयर इज वन कोट मेरे को वही भैया ने बताई थी कि उनके वही फ्लोर पे, ट्रेडिंग फ्लोर पे बहुत चलता है, इफ एवरीवन इन अ फ्लोर इज कन्विंस्ड अबाउट अ ट्रेड, don't let it enter your order book. If everyone is on the right side, it means that it can't be the right side. Correct. Sci-fi. मतलब it makes sense, right? Because if the market is
pricing that properly, एग्जैक्टली there's no profits to be made. 99% लोगों का पैसा एक बंदे को जाएगा. हाँ. तो अगर 99% लोग एक साइड है तो उस साइड पैसा नहीं आ सकता ना, उस साइड से पैसा जाएगा. Correct. हाँ, because what you told me is कि 99% of the people lose money. हाँ. So if you do what they are doing, then you are essentially not हाँ. going to make money. This is very counterintuitive, but That makes sense, like based on the whatever you can predict most of the market crashes, tops and bottoms. उस place पे. तो you're saying कि अगर बहुत अच्छा जा रहा है तो you should short it, not just take. You should not do anything, but Yeah, I mean you're not giving any investment. There is a hypothesis. Yeah, yeah. There is not something proven. Yeah. There is a way of thinking. Correct. One of the strategies that you could think about. हाँ, इस पे strategies based है. बहुत सारी. So that is the process. Okay, the last question. I promise. तो पूछता रहे भाई, मैं बोलता रहूँगा, सुबह तक बात करता रहूँगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आता है बात करने में. नहीं मतलब genuinely कि अच्छा where are you going, where is traders going, क्या सीन है आगे का? Yeah, traders तो I think बहुत सही चल रहा है. Like Bro, it's one of the most successful clubs. Like क्या growth rate है तुम लोग का? मतलब I don't know तुमने क्या चार्ट और क्या strategy बनाई पर बहुत सही था. मतलब I saw it come and just like grow. I mean अपने साल में मतलब I remember performance अपने period में हुआ ना जब अपन लोग ऑफिशियल क्लब बना था हाँ पिछले साल. तो I saw it just really ramp up. बहुत लोग को इंटरेस्ट है, बहुत लोग को जाना है, तो वेल डन. एंड सो कंटिन्यू. सॉरी ट्रेडर्स अच्छा चलेगा यार. आई मीन नए बच्चे भी सीखते रहेंगे, दिल कैरी द लेगेसी फॉरवर्ड. उसका मेरे को ज्यादा कोई वो नहीं है. ऐसा नहीं है. खुद के लिए क्या सीन है आगे लाइक व्हाट आर यू गोना डू ओवर द नेक्स्ट सम इयर्स? फर्म ज्वाइन करना है? Honestly, I don't know यार. I don't know anything. I mean, there are a lot of things सामने जो कर सकता हूँ, बहुत कुछ है. But there again, after all, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई छोटा सा बच्चा ही तो हूँ, क्या ही करूँ. मतलब बच्चा ही तो हूँ यार. मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हैं, ये देख के ओवरवेलमिंग भी लगता है काफ़ी. तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा. बट आई नो कि मैं जो डू समथिंग रिलेटेड टू द मार्केट. आई कांट गेट अवे फ्रॉम इट. अभी तो बन गया ट्रेडर. हाँ मतलब पैसों को तो नहीं छोड़ सकता मैं. पैसों से ही कुछ ना कुछ करूँगा. हाँ फर्म्स अभी मेरे पास एक प्रॉप फर्म का है, अकाउंट है, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ. नॉट ऑफिशियली. हाँ नॉट ऑफिशियली पर प्रॉप फर्म तो ऑफिशियली है. अच्छा ओके ऑफिशियली है. हाँ अच्छा नो प्रॉप फर्म आई हर्ड प्रॉफ का. नहीं प्रॉप फर्म तो वो क्या होता है? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क मिलते हैं. बेसिकली यू गेट अ फंडेड कैपिटल एंड उस पर ट्रेड करते हो. and then- प्रॉफिट स्प्लिट होता है. नाइस. अच्छा सो मेन तो वही है सबसे बड़ा अभी कैपिटल. पर्सनल कैपिटल कम ही है. मेन प्रॉप फर्म का पैसा है. अच्छा तो उसका जो तू सक्सेस होता है वो that's how you fund your spendings and all. सही है भाई. मतलब वेल डन. उसमें स्केल अप हो जाता है तो. हाँ because I mean you're investing a bigger capital, right? As a larger amount of capital I'm guessing in that. प्रॉप फर्म में दे गिव यू द कैपिटल और तो फिर And- उस पे ट्रेड करते How do you find that those people? कहाँ मिलते हैं प्रॉप फर्म? हो. यार प्रॉप फर्म्स देख यूरोप पे तो बहुत बेस्ट है. इंडिया में सूरत में है बट दे आर नॉट दैट ओपन टू एक्सेप्टिंग ट्रेडर्स. वही तो तेको तुम्हें कैसे मिला? पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है. बाकी मेरा तो अभी वाला जो है वो वही है, स्पेन का ही है. तो अच्छा. ऑनलाइन मैंने उसका चैलेंज फेज होता है वो क्लियर करके. Okay, तो you showed that you have good returns. हाँ वो एक पर्टिकुलर चैलेंज देते हैं तुम्हें कि यू हैव टू मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विदाउट हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रॉ डाउन. और वो पास कर लेते हो तो वो फंडेड अकाउंट. Crazy भाई crazy. Thank you for coming. अच्छा I'll just wrap this up now. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अरे भाई मजा आ गया. मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत मतलब इट इज वेरी डिफरेंट. मतलब मैं इतना अगर मैं चेक नहीं किया रिकॉर्ड हो रहा है ना. हाँ हो रहा है.